Hi guys, welcome to United Big Time Talks. Hope you guys are doing well. Sorry we've been a bit inactive lately, but um, ठीक है, we had some valid reasons for that. क्या चल रहा है बाकी? अभी बस I just got up watching India's game. A sad state है भाई. We India just lost 3-0 to Belarus. We were playing again, and it's just sad to see. 80th minute तक game देखा था मैंने. India tried to do something in the game, but eventually they were overpowered, and that keeps continuing with us. I mean, it's in the camp. Maybe I had some confidence in the players here because it felt that after a good ISL campaign, Indian players will step up. The 7+4 rule in ISL is not doing much good according to me. I mean, I'm not judging only based on this performance, but based on the last performance too. So it's just I know we are discussing United, but मैं just अभी वो match देख रहा था, so I'm discussing that. Hello to everyone. So yeah, United related अभी देखे तो England Switzerland चालू था. England just conceded, and I don't know what to say to that because I'm supporting England. Breel Embolo has scored. Interesting fact from there was when Harry Maguire was training, he was jeered and booed by the crowd, which is, I mean, I don't know, not shocking, but it's just the England fans who were at Wembley this afternoon. So it was expected, kind of a thing. Diving into some United news, um, Roy Keane has sensationally said that United should delay Bruno Fernandes' new deal. I mean, I don't know how to take this. Uh, I mean, his comment was it's very strange set of circumstances when you're offering someone with 3 years to go on a contract a new 5 year deal. I don't disagree with this. I don't necessarily disagree with this. The guy has 3 years left on his deal, right? So why to give him a new 5 year contract as per reports that's going on? It doesn't make much sense, but as fans, we can see why Bruno deserves that. He's been our best performer by far. Even after Ronaldo coming in, he's consistently delivered. It's not that he's been off. I mean, I get it. It's the Portugal story that keeps on happening with regards to Ronaldo and Bruno, that they can't play together. But it's not something that concerns me. Uh, Bruno has been at his best for United since he's come, and yeah, he warrants a new deal, but I think it's still too early. I don't know. What do you guys think? And drop in a comment, and yeah, we can start the discussion going with you guys. As to, do you think Bruno deserves a new deal? Yes, he does. I mean, as of now, as in right now, this summer, this season, does he deserve a new deal? There was a development on Anthony Martial. Fabrizio Romano had tweeted that Martial uh, will be back at United this summer. There's no buyback included in his deal with Sevilla, so we'll be again back with him, and I'm sure we are going to place him on the market because I don't think United need him anymore. It's quite evident. Even if he's performing well at Sevilla, which yeah, he's been okay, but still, I don't think it's something that we need right now. I think Marshall is. I have frankly never liked Marshall, so maybe I'm being biased here, but I don't think he's a United player anymore. Amar bhai, yes, it's the stupid timing, right? बाकी तो Ronaldo was named United's March Player of the Month. I mean, there's no surprise. He's the only guy who kind of kept on and you know, Amar bhai. Reading the room, yes sir, you're right. Yeah, so Ronaldo has been named March United Player of the Month. He deserves it for his goals, at least whatever he's done. So it's like his third Player of the Month this season. Um, then
there has, I mean, if you guys don't know, there are 5 players whose contracts are going off this season. There's Juan Mata, there's Paul Pogba, there's Cavani, there's Lee Grant, there's Jesse Lingard. Yeah, so I don't think any of these players uh, will stay on. If you think any one of these players will continue at United, just drop in a comment. But I genuinely don't think that any of these players will be staying on at United after this season. And from the summer, hi Tilak, hi Tilak. From the summer, I've in the last 3 4 days, I've had some. I'm not saying I'm an expert or I have contacts, but I have some briefs in how English media works. I have some intel into how English media functions with regards to United. So the news of United meeting various managers, including Ten Hag. There was also uh, news of Lopetegui again, and a lot of things. Hold on. Hi Vignesh. Hi I'll bro, come back. what's up? Yes, Yeah, yes, thanks. How are you? all good, all good, all good. बस So I बस was मजे just में यहाँ पर. discuss. बस भाई just discussing अभी इंडिया का मैच हुआ. We Yeah, lost to Belarus 3-0. yeah. Uh, yeah, and England का game भी चालू है. England are trailing 1-0 against Really? Switzerland. Yeah. Angulo Three score, no? Embolo. Yeah, Embolo. yeah, And then I was just discussing the players who are out of contract, yeah, and what can we expect. And now I moved on to the discussion on the manager. So yeah, basically, you also heard, right? Briefings जो हो रही है, धड़ाधड़ yeah. यूनाइटेड अपने अपना कचरा फैला रहा है. What do you think? क्या हो रहा है? ये expected मीडिया शाम तो बैठेगी नहीं. They need something Yeah. to feed on. अब जैसे कि हमने डेविड ऑनस्टीन हो या एथलेटिक हो, सबसे सुना है कि at the start of April we will get a clear picture, or Yeah. soon as possible. Like the specific date नहीं है. So hopefully we'll be able to sort that out as soon as possible. Yeah. Even if it comes out in April, I don't think we'll get the news after till the end of the season. Well, they break it out, and इस बार United's insiders are being very cautious with regards to if there are any leaks. This time Yeah. they're going to fuck everyone up in the club. Because हर बार कुछ होता है ना यूनाइटेड का तो लीक सबसे पहले होता है. Yeah. So the manager leak situation, if it gets out this time, I've heard that they've gone very strict with the employees. गौरव भाई बोल रहे हैं मैं बात करने आ जाऊँ. हाँ भाई कहाँ से how can we add him? Share in the link now. गौरव भाई आप ट्विटर पे हो? ट्विटर पे हो या इंस्टा पे हो तो बोलो भी मैं ऐड को फॉलो करता हूँ और भेज देता हूँ लिंक. आ जाओ. हाँ क्या बोल रहा था तू? So आपको लगता है कि एंड ऑफ द मतलब इतना रुकेंगे क्लब सॉरी before announcing? You mean कि official announcement नहीं आएगा till the end of the season, पर we'll get the idea from the media कि yes we finalized someone. So media will continue to milk it. Yeah. So media will not reveal the name इतना easily. पैसा चाहिए उनको reach चाहिए. So even if there are only 3 journalists who will be briefed, 3 media houses. So Sky will be briefed, BBC will be briefed, and Samuel Lucker, MEN will be briefed. इन तीनों को पता होगा कौन होगा, and they will start rolling out content so that they can get their traffic and build engagement for United. And once that is done, उसमें भी they will add in 2-3 more names with comparison. तो ये जो बकचोदी चल रहा है ना अभी ये कंटिन्यू रहेगा. आपको नहीं लगता कि ये काइंड ऑफ in a way stupidity भी है और in a way is kind of understandable because देखो दोनों ही मैचेस जिससे हम linked है strongly, Poch और Ten Hag, they both are in the middle of the season. They still have the league to play for because nothing is finished yet. Nothing is guaranteed. Ajax can still lose the title, PSG can still lose the title mathematically. So do you think it's it's a tricky in a way it's understandable कि इतनी जल्दी they won't break it, so manager का focus ना हट. In a way it's a stupidity from our side कि we're not finalizing someone to get our team sorted for next season.
एक मिनट हाँ Yeah. कहाँ मैसेज किया गौरव भाई? I haven't received anything on Insta. हाँ क्या बोल रहा था ये वही कि एक साइड से स्टुपिडिटी नहीं लगता कि वी आर नॉट फाइनलाइजिंग टू गेट आवर टीम सॉर्टेड फॉर नेक्स्ट सीजन, और इन अ वे इट्स अंडरस्टैंडेबल कि दोनों ही मैनेजर्स जिनसे हम लिंक्ड है स्ट्रांगली, पोच और टना, दे बोथ आर इन द मिडल ऑफ द सीजन, जहाँ पे लीग खत्म नहीं हुआ है, दे स्टिल हैव टू प्ले फॉर द लीग। मैथमेटिकली पीएसजी कैन स्टिल लूज, और आईएक्स जहाँ पे इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, ओनली 2-3 पॉइंट्स का डिफरेंस है, सो एनीथिंग कैन हैपन, सो मे बी नॉट टू शिफ्ट देयर फोकस फ्रॉम द करंट सीजन। रिपोर्ट्स रुकेंगी नहीं किसी के लिए. Yeah. What United का या media doesn't care what is happening to Ajax or what happens to PSG. They care only about the fact that United का manager का search is on and उसको exploit करना है. So even the managers, they are not speaking directly to the clubs. They are representatives, definitely are. And as far as I know, both the clubs, PSG ने तो permission ही नहीं दिया. So PSG से कांटेक्ट ही नहीं है फॉर Pochettino. PSG ने परमिशन नहीं दिया बात करने का, आयक्स ने दे दिया है ना. और वो उस हिसाब से it's evident as of now to me that Ten Hag ही आएगा वो. So it's quite done. I mean, I don't think we are in for anyone except the one insane name that I have. But अगर वो हुआ ना भाई सबसे पार्टी चाहिए मुझे. But I think very unlikely हो. It is very unlikely, but United है. हाँ वो तो है. आपको पता है I would be very pissed अगर वो आया तो. But anyways, let's see. Who wouldn't? वो पूरा फैटनेस की बैंड बजने वाली अगर वो आ गया तो. No kidding. और होप ना ही है. Anyways. बाकी तो इसमें what do you think about Tielemans? I've been seeing some rumors about him. United being linked with him, or his contract expires in 2023. Or he's been linked heavily with us, and he's the player in the position that we need. क्या लगता है आपको? Yeah, decent player, very decent player. Do you think he should be our first option, or do you think we should first address other areas on the pitch, because CDM type role भी खेल रहे हैं? हाँ, but I would say कि get a proper DM first, because Tielemans I feel is still एक box to box kind of player. Hi Pratish bhai. Hello. So I think he's still a box to box player. I don't think he can play the sole DM role. In terms of Pogba ka replacement, I think that would be perfect. But he wouldn't be my first choice. In terms of all over transfers, not saying ki otherwise, but yeah, DM should be the first priority. Uske baad fir center forward, and then maybe if we can get a Pogba's replacement or get Tielemans, then why not? Sure. आपको क्या लगता है प्रतीश भाई? क्या टॉपिक है भैया, ये जो बता दो हमें. Utd Daily Drama वो जो लिंक्ड हुआ है ने इस कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरिंग इन 2023. अच्छा. We are linked with him heavily. So what do you think? Tielemans, I don't think we need Tielemans, to be fair. हमारे पास प्लेयर्स हैं जो Tielemans का काम कर देंगे. गार्नर will be coming next season, वो काम कर सकता है जो Tielemans करता है. He can play in that number 6, number 8 position जो उनको चाहिए. एक DM तो हम लाएंगे तो Tielemans is not an out and out DM. तो जब हम आउट एंड आउट DM के लिए जा रहे हैं, आई थिंक इफ एरिक टेन हाग कम्स तो फिर वैन डी बेक को भी चांस मिलेगा वहाँ पे उस पोजीशन में. वी ऑलरेडी हैव मैकटोमिने एंड फ्रेड हु कैन प्ले इन दैट पोजीशन. तो एक और टिलेमेंस को ला के हम वहाँ पे नंबर खाली बढ़ा रहे हैं. दैट्स ऑल वी विल डू. तो हमको अभी बहुत सारे ऐसे पोजीशन है जहाँ पे हमको गैप्स फिल करने हैं. तो हम उस पोजीशन के लिए क्यों कंसंट्रेट करें जिस पोजीशन पे ऑलरेडी हमारे पास प्लेयर्स हैं. So imagine अगर टेन हाग आया और वन डी बेक को हमने सेल कर दी. नो प्रॉब्लम. फिर भी हमारे पास बहुत सारे प्लेयर्स है यार. सेव हो गया वो काम. फिर भी आपके पास मैकटोमिने है, फ्रेड है, गार्नर विल बी कमिंग इन, जो वो काम तुम आपके लिए कर सकता है. तो इट्स यू हैव 3 players for 1 position. फिर उधर आपके पास 4 players for 2 position हो जाता है. England score. Luke Shaw.
has scored. वाह वाह। Sorry, Pratyush. Sorry to cut you. Bro. No, no. Gaurav bhai. Gaurav is here. Hello, Gaurav. हेलो, आवाज आ रही है भैया? हाँ जी हाँ। आ रही है। कहाँ से हो आप? अरे मैं दिल्ली से हूँ भैया। दिल्ली में दिल्ली से कहाँ हो, से? क्या बात है। दिल्ली में कहाँ से? मैं दिल्ली में करोल बाग से। ये बहुत सही है। मैं बताइए इंदौर में आपके था। बारे में, कब से हो, कब से फॉलो कर रहे हो यूनाइटेड को? मैं यानी मेरे को ऐसे नहीं था। मैं अभी जैसे कि मैं एल क्लासिको से फुटबॉल देखना शुरू किया था स्पेशली। उसके ओके। बाद फिर मैं उसके बाद मैंने जैसे फीफा की गेम आती थी तो 17 का जो एडिशन था उसमें मेरे को पता चला था कि ज़्लैटन मैनचेस्टर यूनाइटेड में गया हुआ था। और मैनचेस्टर हम्म यूनाइटेड की बेसिकली जर्सी मेरे को बहुत पसंद थी, क्योंकि वो जो हम्म वाइब्रेंट रेड कलर होता है तो और उसके स्टैट्स भी अच्छे थे। खासकर मुझे ऐसी टीम पसंद है जिसके अटैक के प्लेयर्स बहुत अच्छे हों। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के रूनी भी था उसमें, तो उससे मेरे को या मैनचेस्टर यूनाइटेड का पसंद आया था। और फिर बेसिकली यानी फिर मैंने 2018 का वर्ल्ड कप देखा था, जिसमें वो मेरा हम्म फर्स्ट मैच था, वो पोर्चुगल वर्सेस स्पेन, जो कि रोनाल्डो वर्सेस स्पेन निकला, 3-3 हुआ था। ऐसे ऐसे कर करके फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर मुझे वैसे ज्यादातर कंटेंट क्रिएटर्स इंग्लिश ही होते थे तो मैं उतना फॉलो नहीं कर पाता था। फिर अभी कुछ दिनों टाइम से मोग भाई मिले थे, फिर ऐसे करके या फेलो कंटेंट क्रिएटर्स मिले, और अब या जाके उन्होंने फिर आपको बताया था। तो इस तरह से अब मैं एक ऐसा चैनल मिल गया है दोनों तरफ से कि जो मुझे यूनाइटेड की प्रॉपर इंफॉर्मेशन देता रहता है। रात को जब मैं वैसे आपके स्ट्रीम्स तो नहीं देख पाता प्रॉपर, बट मैं ओके। रात को डाउनलोड करके यानी जब सोने के टाइम पे आपके स्ट्रीम चला के सो जाता हूँ, या पूरा सुनते अरे सुनते वाह सो वाह। जाता हूँ। थैंक यू भाई सो बेड मच टाइम यार, थैंक यू सो मच, मीन्स बेड अ टाइम लॉट। बेड टाइम टॉक्स का एक नया मतलब निकाला है इसने हमारे लिए। बस नींद नहीं, आना मैं चाहिए। रियली, ऐसे होता वो बंदा सच में सोते सोते नहीं देखता है। थैंक यू सो मच आपके डेडिकेशन के लिए। नहीं, सो बेसिकली यू आर अ वो फ्रेश बात फॉलोअर। नहीं। हाँ, फ्रेश बोल बोल। फुटबॉलर। या नो, फुटबॉल भी और इन टर्म्स ऑफ यूनाइटेड भी 2017-18 से फॉलो कर रहे हो? हाँ, तो वो उतना नहीं करते, यानी जैसे मेरे को ट्रांसफर न्यूज में उतना, मैं प्रॉपर फुटबॉल मैंने यानी 2018 से देखना शुरू किया था। पहले मैं सिर्फ एल अच्छा। क्लासिको ही देखता था, क्योंकि रोनाल्डो मेरा को बहुत पसंद था। हम्म ओके। और जब रोनाल्डो, मेरा ये ड्रीम भी था कि मैंने जब रोनाल्डो के बारे में सुना था कि रोनाल्डो पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड में खेलता था, तो जब रोनाल्डो ने साइन करा था तब मैं अपने क्लास में था। तो जैसे ही वो क्लास में टीचर पढ़ा रहा था तो मुझे पता लगा कि रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो मैंने उसकी क्लास में चीख दिया था। और अरे उसके भाई चक्कर में साहब। और उसने उसके चक्कर में मुझे क्लास से बाहर भगा दिया था। भाई आप विश्वास करो या ना करो, जब रोनाल्डो का न्यूज़ ब्रेक हुआ, आई वाज इन द मिडल ऑफ द रोड। ठीक है, मैं रोड पे कुछ तो शॉप कर रहा था, पता नहीं शॉप में था। मैं वहाँ पे नाच रहा था, चिल्ला रहा था मैं वहाँ पे जोर जोर से। लोग देख रहे थे मेरे पास कि ये पागल और हो गया, क्या हो गया। मेरे को उस दिन जब मैं उस टाइम ऑफिस में पहले था भी एंड पूरा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना, ऑफिस में सही में हमारा व्हाट्सएप चल रहा था। पूरा ग्रुप पागल हो रहा था उस दिन। नहीं, उस टाइम पे सिटी से भी जब रूमर्स आ रहे थे तो मैं बस दुआ कर रहा था कि वो सिटी ना जाए। वो कभी नहीं चलने वो मैंने सुना हुआ है कि या ये बहुत बड़ी राइवलरी है, तो नहीं जाना और चाहिए था। तो गौरव वाला। भाई वो एट वो द एंड वो सिटी वो जाने ही यूनाइटेड नहीं आया। वाला था। वो कभी जाने वो वाला हम्म नहीं। सिटी वो जाने ही नहीं वाला था। सिटी को तो यूज करके यूनाइटेड आया वो। या इवन एट नहीं, दैट टाइम, बेसिकली उस उसके टाइम ना सिटी के एजेंट को से भी मैं क्लियर था कि वो दाद नहीं आ दूंगा। रहा। नहीं, वो पूरा नहीं यही था, वो पूरा कुकड अप ट्रांसफर था वो। बेसिकली पहले लगा था, मेरा डर लग रहा था कि शायद वो चला ना जाए, बिकॉज बहुत ही रिलायबल सोर्सेज बोल ही रहे थे कि सिटी जाएगा जाएगा जाएगा, बट नहीं इन द वो एंड हो इट गया केम था। हियर। बट या विटनेस हो हाँ, गया था। सिटी वाज डन। है वही। दे वर लिटरली वेटिंग फॉर हिम कि भाई अब आके सिर्फ साइन कर, खत्म कर और नहीं, अनलीव करते हैं। बेसिकली वो फ्री में मांग रहे थे रोनाल्डो का, बट उसके एजेंट ने जैसे तैसे 30 मिलियन तक भी उसके लिए सिटी को मना लिया था ऑलमोस्ट। पर तो हम्म मैं उसके एजेंट को इस बात के लिए दाद दूंगा। उनका काम ही वही होता है, बेसिकली टू हम्म, गेट अ न्यू क्लब मगर फॉर वही, योर प्लेयर। मैं रोनाल्डो की वैसे जिस मैंने रोनाल्डो का थोड़ा बहुत ही पीक देखा है, बट अभी बड़ा बुरा लगता है जिस तरह से हालत चल रहे रोनाल्डो के। वो वैसा हम्म। भाग नहीं रोनाल्डो पाता, पहले वो फाइन, लेफ्ट रोनाल्डो विंग खराब खेलता नहीं था। खेल रहा है यार। रोनाल्डो बट खराब वो नहीं खेल रहा है, उसके नहीं, स्टिल अ प्लेयर्स टॉप मैं गोल हैं। स्कोरर दिस सीजन।
हाँ वो बात है, बट लेकिन जिस तरह से पहले बोला जाता था कि रोनाल्डो को, क्योंकि मैंने देखा ना वो लेफ्ट विंग पे खेलता था, उसकी या पेस वगैरह, फिर मैंने पता या करा था कि इस एज राइट में विंग खेलता था ना वो। जिडान जिडान वगैरह इतना सस्टेन नहीं कर पाए थे, इनिएस्टा 90 मिनट्स भी वर्ल्ड कप में नहीं खेल पा रहा था। तो मैं रोनाल्डो को इस बात पे अप्रिशिएट करता हूँ कि वो प्रीमियर लीग के इस टफेस्ट कंपटीशन में इस एज पे भी वो अपना बेस्ट दे रहा है। बाकी तो सॉरी सपोर्ट तो हम करते रहेंगे। सॉरी भाई, आई मिस्ड आउट ऑन दिस पहले वाला कमेंट, फुटबॉल एंथुसियास्ट भाई। पर आवर रूमर इज अभी अभी सिर्फ स्पेकुलेशन है। अभी सबसे पहले मैनेजर डिसीजन जो हुआ है उस बेसिस पे हुआ है, वो हो रहा है। मेरे को एक चीज पूछनी है कि या आपको लगता है कि ये जो अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हुआ है ब्रूनो का, ये अभी नीड था? ब्रूनो कहीं जाने वाला तो नहीं था, आपने ये हाँ हाँ एक्सटेंशन करा ली। इससे इससे ये तो आपने एक तरह से, अगर मान लो टेन हैग आता भी है तो आप तो उसके ऊपर ये फोर्स कर रहे हो ना कि तुझे अब ब्रूनो को खिलाना ही खिलाना है अपने सिस्टम में। एक तो तरह नहीं से ये भाई, और एक्सटेंशन। वैसे नहीं ऐसे नहीं होता। ब्रूनो इज स्टिल अ बेस्ट प्लेयर डिस्पाइट इतने खराब फॉर्म में। ही इज अ बेस्ट क्रिएटर। मोस्ट नहीं। चांसेस उसी ने क्रिएट किए इन द लीग एंड फॉर अस। हाँ ऐसे प्लेयर को आप जाने नहीं दे सकते, वो ऑलरेडी लिंक था दूसरे क्लब से। ऐसे पीक एज पे प्लेयर को आप जाने नहीं दे सकते। उसकी स्टैट्स आप देखोगे, इंसेन है। यू लाइक हाँ, स्टैट्स वो राइट? पिछले तो सीजन स्टैट्स जब वो देखो उसकी। रोनाल्डो नहीं आया था वो बहुत अच्छा प्लेयर था, वो अच्छा खेल रहा था। नो, अभी भी है। प्रॉब्लम हमारी फिर भी वही है, जो हम चांसेस फिनिश नहीं कर पाते। सो यू कांट लेट प्लेयर लाइक ब्रूनो टू गो अवे। हम ऑलरेडी क्रिएटिविटी में थके हुए हैं। अगर ब्रूनो नहीं खेलता है तो वैसी क्रिएटिविटी हमें कोई देता नहीं है। तो इस चक्कर में आप उसको बेच दोगे तो उसको रिप्लेस कहाँ से करोगे आप? सिर्फ हाँ दो बात नहीं, नहीं, बस दूसरा वो बात ये मेरे है को। कि हाँ रिवॉर्ड गुड परफॉर्मेंसेस। पिछले 2 साल से, 2 सीजन से वो अच्छा या परफॉर्म यू कर नो रहा व्हाट था, आपको रिवॉर्ड भी करना होगा व्हाट उसको। व्हाट दिस विल डू एग्जैक्टली। इज, अभी जो ये ट्रेंड यूनाइटेड ने पहले दे गेव कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर नथिंग, मतलब कुछ भी रीजन, लॉजिकल रीजन नहीं होता था टू गिव अ बिग कॉन्ट्रैक्ट टू अ प्लेयर। या बस क्योंकि तेरे को रुकाना है हमको क्लब में, वी आर गिविंग यू अ डील। बट ब्रूनो हैज कम ऑन टू बी लाइक द फर्स्ट प्लेयर हु हैज बीन रिवॉर्डेड बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस। तो तेरे या को हम रखना चाहते हैं, वो कमिटमेंट देना चाहते हैं कि तू यहाँ पे बहुत बढ़िया खेल रहा है। तो सो ये आई थिंक इज अ चेंज इन यूनाइटेड स्ट्रेटेजी टू ऑफर कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर आपने देखा होगा पहले, तो वी ऑफर्ड बैड कॉन्ट्रैक्ट्स टू प्लेयर्स हु वर एवरेज। बैड मतलब या ग्रेट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर देम बट बैड फॉर द क्लब। या और बट इट उसको सीम्स लाइक देख के भी इट्स लगता है कि वो क्लब के लिए खेलना भी चाहता है। उसको देख के लगता है कि हाँ वो क्लब के लिए भी ऑफ कोर्स ऑफ कुछ कोर्स करना ऑफ चाहता है। कोर्स, नो डाउट मेरे को नो डाउट। पॉगबा से बहुत, यानी डिसअपॉइंटमेंट था कि जिस तरह से वो आके, ऐसे आपको नहीं बोलना चाहिए। आप एक क्लब को, इतने बड़े क्लब की आप डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हो? गौरव भाई वो वेट करता है हर एक इंटरनेशनल विंडो का इंटरनेशनल नहीं। अभी इसका भी तो कमेंट किया है विंडो का उसने कर कि दिया उसने हाँ आई वही वुड तो। लव टू प्ले फॉर पीएसजी एंड एवरीथिंग। सो हम्म, बेसिकली फक ऑफ। 6 साल से या हम यही देखते आ रहे हैं इन एवरी, आई लिटरली इन मीन एवरी विंडो। every time Pogba does this, मेरे को वही लगता है कि सर एलेक्स was so right about him. Your या skill, your talent can fuck off. What या matters is what you feel for the club. Are you loyal to the club? वही। Are you loyal to the team? ये तीन फैक्टर ही नहीं है उसमें, and we got him back. लेके आए फिर उसकी भी। वजह से जोसे मरीनो भी बस के नीचे अंदर दे दिया हम लोगों ने, उसके जैसे तो और प्लेयर्स की वजह से। वो तो जाना ही था, जोसे तो जाना ही था, जोसे का वो लिड आ जोजे गया था। डिन जोजे जोजे डिन हेल्प हिमसेल्फ एज वेल। उसके परफॉर्मेंस और मतलब उस टाइम के परफॉर्मेंस और टीम वाज वेरी बैड। इन हिज थर्ड सीजन वी वर पैथेटिक। सो यस, आई स्टिल हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम। 3 ट्रॉफी जिताई है उसने। बट हम्म। उसने ही हैज हिमसेल्फ टू ब्लेम इन हिज डिपार्चर। अच्छा, तो यानी अभी आपके हिसाब से क्या चांस है कि टेन हैग पक्का आ ही रहा है कि कुछ चेंज हो सकता है? मुझे पर्सनली टेन हैग चाहिए। लुक्स मुझे भाई सब लाइक चाहिए टेन हैग। हाँ सबको चाहिए, अभी तो इसको भी चाहिए, विघ्नेश को भी अभी इसको चाहिए। नहीं। नहीं बेस। चाहिए मुझे। आई डोंट माइंड आइदर ऑफ पोच और टेन हाग, आई बट नो आई नो करंट रिपोर्ट्स पे इट फील्स लाइक कि टेन हाग इज, लेट्स से, 70% डन। और दूसरा नाम तो अभी आ भी चुका है अंदर, तो मैं बोल ही देता हूँ, लोपेटेगी है। एंड या
ये वो भी लोपेटेगी, तो लुइस एनरिके की भी बात चल रही थी लुइस शायद, एनरिके भी है, नॉट लुइस एनरिके भी है, नॉट बट वो आएगा नहीं। बट मुझे नहीं मतलब लगता वो इतनी अच्छी टीम को क्यों छोड़ के आएगा, आज उसके पास आज नहीं इतना अच्छा छोड़ेगा। टैलेंट है। अगर 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 प्रत्युष, हमें लुइस एनरिके चाहिए तो वी हैव टू वेट अंटिल वर्ल्ड कप गेट्स ओवर, उतना हम वेट नहीं कर सकते। अभी प्रत्युष, मानचिनी से मैंने भी लिंक हो सकता था क्या? नहीं चाहिए नहीं मानसी, नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं, एक्चुअली बिल्कुल नहीं नहीं। चाहिए भाई। बॉटल कर दिया प्रत्युष, वापस मैंने नॉर्थ बोल दिया है। मैकेडोनिया के आगे। मैं बहुत खुश था उस दिन जब मैं स्ट्रीम पे आया था, मैं मैच नहीं देखा था, मैं बहुत खुश था। मेरे को भाई यानी उन्होंने मैं बोल रुला दिया मैं तो था। बैठे बैठे यही चाह रहा था कि पोर्चुगल भी निकले चुपचाप। अरे अरे भाई निकला तो कोई नहीं फर्क नहीं पड़ने यार, वाला, मेरे को इंग्लैंड उस भी दिन बहुत निकल ही बुरा लगा जाएगा। था। मेरे को उस दिन बहुत बुरा लग रहा था। आप कम ऑन पोर्चुगल बोल रहे थे, सेलिब्रेट आप टर्की के गोल पे हो रहे थे। मैं लास्ट वर्ल्ड मेरा कप ऐसा है, ही मैं है। उसे देखना चाहता हूँ। हम्म, कौन नहीं हाँ, तो ये देखना चाहता कमेंट, भाई। Mudit by Sancho is settling for left wing and Rashford is not working at right wing. So how can two elite players work out for left wing? Do we need another player for right wing or force them to play at right wing? It does not work in this way. I think if it depends on the manager जो आएगा. Now, if you go to see Ten Hag जब आएगा, does he rely on wingers as much as Pochettino? Pratyush. नो टेन हाग भी और रिलाई करता है एक्चुअली टेन दिस हाग भी राय सीजन। करता है इफ विंगर वी में। सी उसका मोस्ट ऑफ द अटैकिंग प्ले कम्स फ्रॉम विंडर्स होल्डिंग द विकेट। सो Hmm. या इट डिपेंड्स, बट आई थिंक जो भी मैनेजर होगा दे विल लाइक बोथ ऑफ देम। आई एग्री कि रैशफोर्ड ऑन द राइट विंग डजंट वर्क, बट स्ट्रेंजली उसके मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीब्यूशन वहीं से आए हैं। वही से है सो बिकॉज यू खिलाया भी डोंट नो वही है। व्हाट टू वी डोंट नो व्हाट टू डू। See, बट see नेक्स्ट that सीजन अभी डायलेमा ये भी है कि ये Vignesh, आएगा अपना Vignesh, लोन पे कौन that's है, that's one of the अमाद। reason Ahmad, but that's one of the reason why I don't believe in stats. क्योंकि you say कि Rashford के most of the contribution from right wing आया है, but right wing से वो start किया है, he switches the sides as well. तो आपको ये देखना है कि stats क्योंकि वो right wing से start किया तो उसके right wing पे चल जाएंगे stats. Like to be associated with him, बट वो but he बना might कैसे be रहेगा? playing or he might be moving from the left side उस या पॉइंट ऑफ टाइम पे इन द मैचेस, क्योंकि वो राइट से बहुत ज्यादा उसको नहीं देखा हमने। एक दो मोमेंट ही याद है जिसमें उसने एक क्रॉस किया था या एक पास किया था, बस बहुत ज्यादा याद नहीं है उसका राइट से। Yeah, I agree कि Rashford on the right wing doesn't work. Sancho has to stick on the right unless and until आई we can get थिंक someone like like Rafinha or Ajax का Anthony. आई डोंट थिंक सो If we वी आर get गोइंग टू someone गो like दिस वे। left-footed right winger तो बात अलग है। जैसे अगर Ahmad settles in, जो कि बहुत ही unlikely because on the loan also he's not getting that much time. In his last 10 games or 11, 12 games he hasn't started All since our his loans debut. have been bad. Our loan Yeah, decisions have have to been be bad. reviewed. They have, Pelistri तो छोड़ ही दो. So these yeah. players haven't, loans particularly haven't worked out. So अगर हम मार्केट में जाते हैं for someone like Rafinha or Ajax का Anthony, then it makes sense to play Sancho on the left. व्हाई विल Only बी if we गुड get फॉर someone like them. व्हाई Sorry, विल बी गुड फॉर क्यों जाएंगे उनके? Elanga जा is सकते हैं coming ना up. He is जैसे playing. लिंगार्ड He विल is गो। doing good. Elanga is हाँ doing good on the right side. हाँ बट Ahmad लिंगार्ड विल को गो, धीरे धीरे मार्शियल विल गो, यू विल हैव टू no रिप्लेस देम no Pratyush, no समवेयर। problem na. what he's talking about is more of squad depth. No, yeah, okay. या We या have a squad depth. What I am talking about now, Ahmad will play on the right side. Alanga is going to play on the right कैसे side. कैसे Alanga को कहने आप का ले प्रत्युष आओ। भाई? मैं अलंगा कैसे जा तो रहा हूँ? टाइम ही नहीं मिल रहा है, नॉट अलंगा, अमाद को टाइम ही नहीं मिल रहा है दिस सीजन। It's okay, no problem. रहने दो। उसको लाओ अपने पास। आप नहीं टाइम दो ना। Alanga is a young player. अच्छा Ahmad is a young player. ओके आप उनको दोनों को रोटेट करो राइट विंग पे। एंड यू हैव ओके Sancho and Rashford for the left wing. तो वो दोनों विंग पे वो गेट डेप्थ मिल गई आपको और क्वालिटी डेप्थ या है ना? नो तो ऐसे ही आई Pratyush, स्टिल फील कि सांचो राइट पे ही खिलाना चाहिए हमें बिकॉज ही इज he मोर is doing प्रोडक्टिव good और on the left at this point of time. उसको डैलो से वो सपोर्ट भी मिलता है टू नहीं प्ले अटैकिंग। करेक्ट सो नहीं वो आई ठीक है बट यू हैव गॉट two players two players basically Elanga and Sancho who can play on both wings equally good. या ठीक है तो आप अपने हिसाब से स्विच कर सकते हो स्विच मिक्स एंड मैच कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द ऑपोजिशन यू आर प्लेइंग यू हैव गॉट क्वाइट अ गुड टैलेंट ओवर देयर ऑन बोथ द विंग्स या और जिस तरह या से खेलता है आई थिंक ये एरिक टेन हाग अगर हम बात करें तो एरिक टेन हाग इज वो वाइड से स्टार्ट करेंगे उसके विंगर्स वो अंदर आएंगे या ताकि ओवरलैप करेंगे दोनों आपके फुल yeah, एग्जैक्टली ठीक है या तो जब जो प्लेयर्स आपके अंदर आ रहे हैं तो उस पोजीशन में आई थिंक वी विल मिस ग्रीनवुड अ लॉट
क्योंकि that would have been Yeah, perfect for Perfect Greenwood for Greenwood. on the right wing. Greenwood perfect रहता अपने लिए, उसको अंदर आता, लेफ्ट फुट राइट फुट दोनों है वो, Do but we you will do you miss guys him. think do you guys think I mean, ever since Greenwood का issue हुआ है, our downfall has started? Yeah, A bit, but not much. अब we miss him क्योंकि because जो वो एक बहुत कुछ बैलेंस cohesion राइट लाता था. विंग पे रहता था, इवन दो अगर सांचो नहीं रहता है, तो वो बैलेंस और जो गोल उसका जो एबिलिटी था टू गेट आउट Yeah. फ्रॉम द टाइट एरियाज एंड क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग, वी आर Bhai, मिसिंग समथिंग लाइक दैट. his one ability to get those shots from weird angles is definitely being missed. मतलब वो ग्रीनवुड ही कर सकता है, जो वो शॉट लेके नियर पोस्ट पे कीपर को बीट करना है. इट्स नॉट चाइल्ड्स प्ले. अ प्रोफेशनल Yeah. गोलकीपर इज फर्स्ट टॉट कि भाई नियर पोस्ट सबसे पहली चीज है तेरी, इट्स योर फर्स्ट प्रायोरिटी. Yeah. और इस बंदे ने बैक टू बैक वर्ल्ड क्लास गोलकीपर्स को नियर पोस्ट बीट करके गोल्स मारे. सो Yeah. दैट्स हिज टैलेंट. वो एक जबरदस्त स्किल है जो अपन मिस कर रहे हैं, नो डाउट. बट ओवरऑल गेम प्ले में I don't think there's much that's changed. Okay. Goals में yes, but gameplay में Greenwood ऐसे भी Yeah. कुछ, he used to get the final pass before shooting, और उसमें भी Yeah. उसकी decision making was going bad. If you see in the Yeah. last few games, उसका It decision was making yeah. was We actually criticized him earlier this season for yeah, not passing enough. Yeah. so it's not affected as much now. अभिषेक, we need a CDM, ये तो सबको obvious है, absolutely obvious. We need a Yeah. CDM. Yeah. For me, we need 6 players at least, जो कि इस विंडो में होगा नहीं, होगा नहीं. 6. जो कि इस विंडो में होगा नहीं. बट रियलिस्टिकली पूछो तो वी नीड अ सेंटर बैक, वी नीड अ CDM, वी नीड अ राइट बैक, वी नीड अ लेफ्ट बैक. ये 4 प्लेयर हमको चाहिए. देन वी Yeah. नीड अ स्ट्राइकर एंड वी नीड अ सेंटर मिडफील्डर, जो हमारे पास नहीं है. हमको ये 6 प्लेयर्स चाहिए होंगे टू स्टार्ट डूइंग समथिंग ऑन द पिच जो कि अच्छा लगे देखने. वी नीड दैट Yeah. मच एट लीस्ट The to issue start competing. with that is you have to look at, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर अब तक मैनेजर डिसाइड हो गया है, तो ये प्लेयर्स भी डिसाइड हो गए होंगे स्ट्रेटजी वाइज एज टू हाउ दे वांट टू सेट अप. बट अपना सबसे पहला इशू ही मैनेजर डिसीजन है. मैनेजर भले ही इट्स गेटिंग क्लोज, एनीथिंग कैन चेंज एट द लास्ट मोमेंट. दैट्स हाउ दे वर्क. यूनाइटेड ऐसा ही काम करता है. फीड कुछ और करेगा मीडिया को लेके, किसी और को आएगा. So it's totally uncertain कि भाई we are living in such times that we don't know what the fuck is the future of our club. अभी ये समय है कि आगे होने क्या वाला है. रैंगनिक रहेगा, कौन से प्लेयर आएंगे, कुछ शॉर्टलिस्ट बना है, मैनेजर डिसाइड नहीं हुआ है. तो गो टू सी एक के बाद एक प्रॉब्लम्स है. गौरव भाई, वांट टू कमेंट ऑन दैट? हाँ, मेरे को तो लगता है कि जैसे CDM की बात हुई थी, आपके हिसाब से चुआमेनी नहीं चल सकता हमको? बट उसके लिए भी वो लोग 60-70 मिलियन मांग रहे हैं. वो जिस तरह से राइस के लिए 100 मिलियन मांग रहे थे, तो हमारा तो कोई भरोसा नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं. नहीं, हम राइस ही लेंगे सब में. राइस नहीं आएगा. नहीं, जिस गौरव तरह भाई, से मुझे हाँ, एक चीज क्लियर हो जाए कि ओवर स्पेंड नहीं करने वाले. जो मैनेजर ला रहे हैं, अगर वो टेन हाग है, तो वो उसी इंटेंशन से ला रहे हैं कि भाई तू प्लेयर्स बना, अकेडमी बना, बिल्डअप फ्रॉम द बैक, अपने यंगस्टर्स को प्रमोट कर. 1-2 प्लेयर आएंगे, आई गेट इट, बट वो 1-2 प्लेयर हम लोग को एग्जैक्ट पोजीशंस में चाहिए जो हमें चाहिए. बट ओवरऑल फर्स्ट डिसीजन यूनाइटेड विल टेक एज अ मैनेजर. सेकंड डिसीजन इज व्हिच 2 पोजीशंस वी नीड द मोस्ट. वो पोजीशंस सबसे पहले तो मैगवायर को भगाओ यार. वो सब नहीं होगा, भूल जाओ. नहीं, मगवायर नहीं जा रहा. इन एज मच एज यू वांट हिम टू गो, वो नहीं जाने वाला. नहीं, वो बात नहीं, कम से कम प्लेइंग 11 से तो हटा ही सकते हैं ना. आज देखो इंग्लैंड ने हटा दिया. उसको हटा के किसको खिलाओगे आप बताओ मुझे. तो आप एक यूथ के डिफेंडर को यानी तो दे ही सकते हो आप चांसेस. वो अभी दे मेरे सकते हो बिकॉज वी डोंट हैव मच टू प्ले फॉर. बट ऐसे भी नहीं बोल सकते बिकॉज टॉप 4 इज स्टिल अप फॉर ग्रैब्स. और ऐसे सिचुएशंस में वी कैन नॉट डिपेंड ऑन द एकेडमी लैड. आई मीन आई गेट इट कि जैसे एलांगा परफॉर्म्ड सिंस द स्टार्ट, सिंस हिज डेब्यू, वैसे नहीं होता है. हम बहुत ही जल्दी डिपेंड हो जाता है ऑन द एकेडमी लैड. उन पर एक्सपेक्टेशन हम जल्दी ही रख देते हैं कि नहीं भाई ये आ गया, ये कुछ कर देगा. सो इट डजंट वर्क लाइक दैट. बट लेकिन मेरे को वो वाइब नहीं आती हैरी मैगवायर से कि वो आर्म बैंड भी डिजर्व करता है. नहीं, वो बात अलग है. देखिए, एक होता है ना लीडर, जैसे मुझे रैमोस मैंने देखा है कि वो भिड़ जाता था, सब कुछ एक मेंटेलिटी लाता है. आपको लगता है कि वो बंदा मैनचेस्टर यूनाइटेड को रिप्रेजेंट कर रहा है?
अब वो उसको कोई फर्क ही नहीं उसके पड़ता कि क्या हो रहा उसके है। कैप्टनशिप पे तो लिटरली ईच एंड एवरी फैन इज क्वेश्चनिंग। रही बात उसकी टीम में सिलेक्शन की, वो आई थिंक नेक्स्ट सीजन से पिक्चर क्लियर हो जाएगा इफ वी गेट अनदर सेंटर बैक और नॉट, बट वो जाएगा नहीं, इतना तो पक्का है। हो Abhishek जाएगा। has said लेकिन Jules Kounde. I think he's going to stay in La Liga and he'll mostly join Real. Just to say, as per what I know. Real will go for Kunde or they will go for Pau Torres. Kunde, mostly Kunde. Pau Torres भी है उनके उसमें. If they don't get Kunde, they'll get Torres. वैसा चल रहा है. जूल्स कुंडे तो चेल्सी से भी लिंक हो रहा था। बहुत हो रहा था, वो हो गया, वो फेज गया. हो गया। खत्म हो गया ना, अभी चेल्सी को बाय करने के लिए कोई चेल्सी तो तो चाहिए पहले, उसके बाद ट्रांसफर्स होंगे। चेल्सी का तो बहुत नुकसान हो गया। थिंकिंग ऑफ दिस ही मुझे हंसी आ रहा है. मैं बोल रहा हूँ रामोस जान से मार डालेगा मगवायर को. रामोस नहीं जान से मार डालेगा. नहीं, जैसे कि बोला जाता था ना कि पीके को भी वो पुयोल सर ने यानी अच्छे से यानी अपने अंदर ट्रेन करा था। ये मैगवायर को तो ट्रेन भी नहीं कर सकते ना यार, No need, कितना नहीं भाई बकवास कर आदमी है। सकते। अगर पीके अगर पीके रामोस came भाई from पीके came जितना from भी Sir मगवायर. Alex Ferguson mentality of United. हाँ यहाँ से वो हाँ गया था बार्सिलोना, तो दैट वाज ऑलरेडी उसका एक माइंडसेट डिफरेंट था। ठीक है, सर एलेक्स फर्ग्यूसन लेट हिम गो क्योंकि वो उस लेवल मतलब प्रीमियर लीग के लिए वाज नॉट सूटेड, इसलिए नहीं क्या लेके गया था बिकॉज ही वाज नॉट गुड और ही वाज नॉट अ गुड डिफेंडर और समथिंग लाइक दैट। प्रीमियर लीग के लिए सूटेड नहीं था वो, दैट्स व्हाई ही वाज अलाउड टू गो बार्सिलोना। तो उसका मेंटालिटी ऑलरेडी था। वैसे भी व्हाट सोच रहा yeah, हूँ what पीयूष अगर. Puyol taught him, what Puyol taught him was, how to read game. That was something that was missing from him. एक टॉप डिफेंडर को ना गेम रीड करना पड़ता है, और दोनों टॉप डिफेंडर आपके कमिटमेंट वाले टॉप डिफेंडर्स नहीं हो सकते। जो आपके जो भी कभी भी जो आपको सेंटर बैक का होता है ना पेयरिंग बनता है, वन हैज टू बी द वन हु कवर्स द मिस्टेक, अदर वन हैज टू बी द वन हु गोज इन कमिट। जैसे अगर रैमोस और वरान में देखो, वरान ऑलवेज कवर्स, रैमोस कमिट करता है, इसलिए रैमोस का तुम देखो कि बहुत ज्यादा येलो कार्ड्स या रेड कार्ड्स। ठीक है, हाँ, वो बहुत गलत करता है, बहुत सारी चीजें वो गलत भी करता है, बट ही डज अरे व्हाट ही भाई इज साहब सपोज्ड उसने वो साला को क्या हाथ तोड़ दिया भाई था यार भाई। और भाई 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 I have उसको one कार्ड line. भी नहीं I मिला have था। I have Ramos के लिए one line. The perfect villain that this game needed. या ठीक है। I'm फिर not फिर हम kidding. अपना 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 बेस्ट डिफेंसिव प्लेयर पर आते हैं, विटिच एंड रियो फर्डिनैंड। रियो फर्डिनैंड बहुत रेयरली देखोगे कि कमिट करता। इट वाज विटिच जॉब टू हसल द प्लेयर इन द बॉल, टैकल्स मारना विटिच का काम था। रियो फर्डिनैंड कवर करता था। रियो फर्डिनैंड का एक फुटबॉलिंग ब्रेन डिफरेंट था, वो पीछे से बहुत कुछ देख सकता था, बहुत सारे पासेस पीछे से निकालता था। दैट वाज नॉट विटिच जॉब। हमारे साथ इशू ये है कि वरान इज अ वेरी वेरी गुड कवरिंग सेंटर बैक, वो कवर कर लेता है बहुत बढ़िया से। मैगवायर नहीं टैकल जीत पाता है, लेकिन वो कमिट कर देता है टैकल, एंड दैट इज द प्रॉब्लम विद अस। और अगर हम मैगवायर के जगह पे लिंडेलॉफ को ले आते हैं, तो लिंडेलॉफ एंड वरान आर सिमिलर टाइप, दोनों में से कोई कमिटमेंट वाला प्लेयर नहीं है। बोथ ऑफ देम लाइक्स टू कवर योर द अदर सेंटर बैक, जो दूसरा सेंटर बैक रहता है उसको कमिट करना पड़ता है। नहीं, सो मुझे तो दिस टू आर उसका नॉट वो वर्किंग। मुझे तो लगता है कि उसका वो फिजिकल पोस्चर भी थोड़ा सा अजीब सा ही है। वो कमिट किसका? क्या करने मैगवायर का। वो उस दिन मैं देख रहा था वो जो एथलेटिको के कुछ मिनट वो बॉल के साथ ही लेके क्या कर रहा था, वो अचानक से भाई डीडिया उसका को दे दिया ट्रोल था। उसका ट्रोल डीडिया वीडियो को पता दे था दिया, म्यूजिक के हाँ। साथ. और अचानक से गलती से वो फिर डीडिया ने पास दिया, वो उसके एथलेटिको के एक प्लेयर पे चली गई, बट उसने वहां से शॉट ले लिया और डीडिया ने सेव कर लिया। मैं तो भाई ये क्या देख लिया मैंने भाई। नहीं, उस पर्टिकुलर मूव पे डया की भी गलती थी। आई मीन हाँ हाँ, डेंजर रीड कर सकते हो आप एज अ कीपर, यू कैन नॉट पास टू अ सेंटर बैक हु जो ऑलरेडी मार्क्ड है, सो या यू आई मीन यू नो ट्राई हाँ, टू शूट इट अगर पास दे भी फर्दर रहा है तो फॉरवर्ड ऑफ द पिच। he should have called out on you or something like that, या ताकि पता तो चले. बट देन मगवायर जो किया सी था ना बहुत से परफॉर्मेंस. सिचुएशंस इस सीजन डया की वजह से भी आए हैं, नो डाउट। या आई एम हिज बिगेस्ट फैन, बट ठीक है, ओवरऑल द टीम हैज सक्ड, यू कैन नॉट ब्लेम वन सर्टेन इंडिविजुअल दिस सीजन। मिडफील्ड ये को भी यानी थोड़ा सा करना चाहिए। थोड़ा नहीं, बहुत ये कुछ करना क्या बोलते हो? चाहिए। सो डिलीट एंड निकोलस सूले डिलीट तो नहीं चाहिए, मिनोरेला लाना कम्स चाहिए. विद इट, मिनोरेला कम्स विद इट, डिलीट तो नहीं चाहिए। निकोलस सूल इज अ गुड शाउट। रुडिगर फिर नहीं Pula is चाहिए। good. रुडिगर इसलिए नहीं चाहिए कि रुडिगर इज गुड इन द थ्री तीन सेंटर बैक्स के साथ वो अच्छा खेल लेता है,
If Yeah, you have John ever Kennedy. look at what he does at चेल्सी, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स रहते हैं जिसमें सिल्वा उसको कवर कर जाता है. A lot of times सिल्वा you know muck up his mess that he has created. तो बहुत समय रुडिगर का रैश चैलेंजेस आते हैं इन दो के डिफेंस में. सेंटर बैक्स अगर दो है आपके पास, यू कैन नॉट कमिट रैश चैलेंज. आई थिंक नहीं कर सकते. रोडिगर को परफेक्टली सम अप करना हो तो चेल्सी के मैचेस देखो जब टूशल नहीं था, प्रायर टूशल, उसके पहले उसकी परफॉर्मेंस देखो, ही वाज स्ट्रगलिंग टू लैम्पार्ड मेक से इट भी टू द पहले देख स्टार्टिंग लो, 11 एज लैम्पार्ड के पहले भी वेल. देख लो. लैम्पार्ड के पहले लैम्पार्ड के कौन अंदर था? was Christensen was his favorite, wasn't it? So लैम्पार्ड के पहले कौन था वो yeah, in the back four he struggles massively. सारी Rudiger, सारी के समय भी देख लो. He yeah, was not जी. working. He was not working. Rudiger cannot play back foot. yeah. यानी अभी मेरे सुनना है कि वो वरान इंजर्ड हो गया है, सही है ये बात? Slight injury. नॉक है, हाँ. Knock in. Nothing serious. Yeah. He will do that. अरे बाप रे. बाकी गाइस ऑन द न्यूज़ फ्रंट वी बीन वेरी साइलेंट, तो मैनेजर के ऊपर ही Almost चल done. रहा है अभी सब. Almost done. Yeah. For me, I think क्योंकि अचानक से आपने इतना हाइप बना दिया, then it all goes silent. मतलब कि almost done है, फिर वो अचानक से रिलीज करेंगे. Yeah. तो मेरे को ये क्वेश्चन पूछना है कि हम अगर जब 10 आएगा तो हम किस ब्रांड की फुटबॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सिटी ब्रांड. सिटी वाली? अब ये आप बोल रहे हो कि यू वांट 10 आग, ओके? आपने फॉलो किया है? मैंने थोड़ा बहुत देखा, यानी हाइलाइट्स वगैरह, मैंने ज्यादा नहीं देखे, तभी मैं पूछ रहा हूँ. मेरे लिए भी एक एक्सपीरियंस होगा. आपने स्टार्ट आप जब आए थे ना स्ट्रीम पे तो यू सेड कि यू प्रेफर 10 आग. हाँ, मैंने क्योंकि मोहक भाई से पूछा था, मोहक भाई ने बताया था. नहीं, क्योंकि मोहक भाई ने ये चीज बताया था. नहीं, मैं ये चीज बोल रहा हूँ, मोहक भाई ने ये बताया था कि अगर बाई चांस उस टाइम पे ऐसा लग रहा था अगर हम 10 आग के लिए अभी नहीं जाते हैं तो कुछ टाइम बाद जैसे पेप भी सिटी छोड़ रहा है तो सिटी का भी बेसिकली प्रायोरिटी 10 आग ही होता. I get that, Gaurav. भाई प्रॉब्लम ये है कि देखो अभी ये आई एम सॉरी मोटिक भाई, प्रॉब्लम ये है कि ही इज नॉट द ओनली वी आर नॉट द ओनली क्लब जहाँ पे 10 आग लिंक्ड है, ठीक है? ही और एक इंग्लिश क्लब है, अननोन इंग्लिश क्लब है जिससे ही इज लिंक्ड, और एक जर्मन क्लब और एक स्पेनिश क्लब से भी वो लिंक्ड है ऑलरेडी 10 आग. सो ऐसा नहीं है कि अगर हम 10 आग के लिए नहीं जाते तो वो गारंटीड सिटी ही जाएगा. वो जाने के लिए मैड्रिड भी जा सकता है, बारसा भी जा सकता है, वापस डॉर्टमंड भी जा सकता है. You cannot predict anything what will happen in the future. You can't predict what will happen in the future. I get it. But people are so sure कि नहीं, अगर हम नहीं जाएंगे तो he'll go for City. अरे वैसे नहीं होता ना, anything can happen. He will suit City के प्लेइंग स्टाइल में या जो अभी उनका स्ट्रक्चर है गेम. भाई ये बात ही मत करो, मेरी फटती है भाई, मेरी फटती है. वो सूट करेगा, फटेगा नहीं, बट वो सूट करेगा. 10 हैक सिटी नहीं जाना चाहिए, कुछ भी हो जाए. एग्जैक्टली, कुछ भी हो जाए. सिटी बहुत डेंजरस हो जाएगी. देख, फुटबॉल एंथुसियास्ट से एरिक टेन हाग इज मोर ऑफ डायरेक्ट फुटबॉल. नो, बिल्कुल नहीं. दैट इज पोचेटिनो ज्यादा डायरेक्ट खेलता है देन पेप के मोल्ड में एरिक टेन हाग. क्योंकि एरिक टेन हाग व्हेन केम इनटू द ऑन द सरफेस ना, तो पेप के अंडर में ही से ही आया है वो. इन बायर्न के सेकंड डिवीजन की क्लब में था वो, एंड he was preparing the youth to play just the way Pep plays, और उसके थ्रू भी प्लेयर्स आते थे बायर्न के लिए. तो वो उसी मोल्ड का मैनेजर है. एंड why I want Erik ten Hag over Pochettino is also very good manager. ऐसा नहीं है, जो ठीक है बैंटर अपने जगह पे होता है, we all banter about somebody or the other, बैंटर अपने जगह पे है. तो Pochettino is a very good manager, but the problem with Pochettino is and Erik ten Hag जो मेरे लिए सबसे ज्यादा important है is the personality. Pochettino is a very subsided personality. वो कुछ भी एक्सेप्ट कर लेता है. लाइक इन टॉटनहम हॉटस्पर में भी उसको दो सीजन साइनिंग्स नहीं मिले थे साइनिंग्स, and they were at the peak. अगर उस समय उनको सही साइनिंग्स मिल जाते ना तो they could have actually won the league at that point of time. I think that is exactly the reason why he's the best suited for the United job. So that is exactly the reason why I don't want him. अगर आप देखो ना तो बहुत सारे लोग ये भी उसके पॉजिटिव में ये डालते हैं पोचेटिनो के लिए, that we have got quite a few number of players जो सूट करेंगे उसके प्लेइंग स्टाइल को. The same number of players have put
Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer and Ralf Rangnick at a disrespect. जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, व्हाट्स द गारंटी कि वो प्लेयर्स जाके पोचेटिनो के लिए परफॉर्म करेंगे? उनका प्लेइंग स्टाइल सूट करता होगा पोचेटिनो के प्लेइंग स्टाइल को, दैट्स डिफरेंट थिंग। लेकिन वो उनका प्रत्युष मेंटालिटी नहीं सूट करता है फॉर यूनाइटेड। तो ये आप चीज पोचेटिनो लाओ, चाहे आप एरिक टेन हाग लाओ, आपको क्लियर आउट करना ही होगा। लेकिन विद पोचेटिनो क्या होगा कि वो ये सोचा जाएगा कि ये प्लेयर्स उसको सूट करते हैं, तो हमको क्लियर आउट की जरूरत नहीं है, हमको इसी पे बिल्ड करना है। तो फिर वही चीज हो जाएगा कि जो हम एलेक्स फर्ग्यूसन के टाइम से अभी तक खींचते हुए ला रहे हैं, हर एक मैनेजर का एक एक दो तीन तीन प्लेयर्स हमारे पास है और एक खिचड़ी बन चुका है। तो वी नीड समथिंग एब्सोल्युटली आउट ऑफ हियर, जो कि हमको नहीं चाहिए ऐसे मैनेजर्स जो कि इसी के ऊपर बिल्ड करें। बिल्कुल, इट्स नॉट जस्ट दैट वी चेंज मैनेजर एंड थिंग्स विल चेंज। वो मैनेजर तो सिर्फ शुरुआत होगा चेंज का, वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। उसके बाद तो बर्फ तोड़ना शुरू होना पड़ेगा, व्हिच इज व्हाई फर्स्ट हायरार्की ब्रेक होगी, फिर हायरार्की डिसाइड होगी कि कौन क्या रोल प्ले करने वाला है, फिर प्लेयर्स के ऊपर आएंगे कि कौन से प्लेयर चाहिए, कौन से प्लेयर नहीं चाहिए। और ये एक समर की बात नहीं है, ये रीबिल्ड मतलब आने के बाद जो रीबिल्ड शुरू होगा दैट विल बी अ टोटली न्यू रीबिल्ड। बट उसमें दिस क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड शुड रिमेंबर कि ये कुछ भी हो रहा हो, चाहे हम 15-16 थी क्यों ना हो, स्टिक बाय हिम, स्टिक बाय द गाय यू वांट, इवन इफ इट्स पॉच, इवन इफ इट्स टेन हैग, जो भी हो, स्टिक बाय। 2 सीजन 3 सीजन स्ट्रगल, चौथे सीजन में तो विल बी बैक। आई मीन देयर विल बी समथिंग, कुछ तो होगा कि एक स्क्वाड बन चुका है, पर उसमें भी वी नीड टू हैव एग्जिट्स फर्स्ट, देन वी हैव टू बाय प्लेयर्स हु आर इन आवर एज जोन, जो यूनाइटेड चाहता है 21 to 25 26 के एज के ग्रुप में हो, एंड उस हिसाब से वी स्टार्ट बिल्डिंग द टीम। It's simple as that. Football and Ten Hag will never be at Madrid. He has not get. भाई कैसे प्रूव कर सकते हो? उसने कभी जब किया ही नहीं, जब उसने किया ही नहीं। उसका जो रिएक्शन है प्रत्युष ओवर द यूनाइटेड जॉब, उससे ही पता चलता है कि वो फाड़ देगा जब भी जाएगा। he's pretty damn good नहीं है। और अगर उसी पॉइंट पे रखना है तो पोचेटिनो ने कैसे हैंडल कर लिया ईगो पीएसजी तो में? ईगो हैंडल की बात है, फुटबॉल एंथुसियास्ट भाई, आप सिर्फ उसके प्री और पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंसेस देख लो, उसका जो वे ऑफ टॉकिंग है ना, ही इज वेरी क्या बोलते हैं, अग्रेसिव, डायरेक्ट। हाँ, ही इज अ कैरेक्टर। वो ऐसा नहीं है कि भाई उसको आप बोल मतलब कैसे बताओ, वो पक्षोदी नहीं सहेगा, ही इज नॉट अ नाइस गाय। हाँ, ही इज नॉट अ नाइस गाय, ही इज नॉट लाइक एन ओले कि जो हंसते हंसते इंटरव्यू दे देगा, वैसे नहीं। अगर आप उसको टेढ़ा पूछेंगे वो टेढ़ा जवाब दे देगा। Which is one of the reasons why him and Rangnick go hand in hand, because Rangnick का mentality भी वैसा ही है, सीधी बात नो बकवास, इसका भी वही है। So I mean to some extent Poch, because he's had to handle these big player egos, he's been subsided a bit, और वो तो माफिया है, उधर तो माफिया, that club is mafia, so he has to deal with that procedure. But I think at Tottenham he was dominant. I mean, I felt him whenever he spoke. But मुनीत भाई यहाँ पे मेरा इशू ये है ना, टॉटनहम में जितने प्लेयर्स थे सबको उसने खुद बनाया था। Yeah. So it was easy for him to be dominant. I get it. So then we have to decide on one thing, Pradesh. Do we want to build the club now, or do we want to make the club rise now? Because as far as I know, with Pochettino building नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कुछ प्लेयर्स हैं जिनको बोर्ड बोलेगी कि they are suited for Pochettino. I disagree. ऐसे नहीं है, Poch के, हाँ, exactly. Poch will be able to build a squad that he wants, which can be great. वो बिल्ड कर सकता है, बिल्डर है, नहीं कर सकता है। अंतर कहाँ पे मेरे को पड़ता है ना मुदीत भाई, आपका मिडफील्ड चेंज नहीं होगा ओवर, क्योंकि उसका प्लेइंग स्टाइल के हिसाब से फ्रेड, ठीक है, अगर नहीं होता है तो दैट विल बी फ्रेड और मैकटोमिने बोथ सूट करेगा, but that will be his call, no, Pochettino का, if he wants the midfield to remain and same, if he fails, and if the same midfield can, वो तो hypothetical, ये hypothetical question हो गया ना। the question is कि regardless of whoever comes in, जैसे आपने खुद ने ही बोला है कि regardless जो भी आए, टाइम लगने वाला है। तो अगर Poch is happy with the current midfield and if it delivers with the current midfield, तो problem क्या है? That's difficult. A manager like Mourinho, a manager like Ralph, having such an extent of knowledge and experience, are not able to make this player play. No, this is difficult. नहीं कर सकते ना। अभी I think मैं समझ पा रहा हूँ क्यों difficult है to appoint any one of them, because जो भी होगा, no one is perfect. See, no one is perfect. They have to eventually learn on the job and समझ के करना होगा. They both have their pros and cons. But that's what do we
I mean, I don't think even Premier League past experience counts here. I No, don't give no, a Yeah, fuck about that too I don't because think so. इसमें because United is a different animal when we talk about any other Premier League club and managing this club. ये बहुत ही टट्टी Especially in this पीछे mess. जो फैला Especially हुआ in है this यार mess. बहुत yeah. गोबर फैला और हुआ है बैक रूम में सो आई और टू क्लियर दैट आउट वी नीड अ पर्सन हु इज फर्स्ट ऑफ ऑल उसका पहला शर्त ये होना चाहिए कि मुझे पूरा कंट्रोल चाहिए विद रैंगनिक मतलब साथ में मिलके why Yeah. I'm always inclined towards Ten Hag. I love Pochettino, but why I'm inclined towards Ten Hag is because I think he and Rangnick as a team will do very well because उनका सोचने का तरीका एक तरफ है एक ही साइड का and that will reflect on the squad. Otherwise, if I get Pochettino and Rangnick, I don't see वो personality difference जो होती है ना एक आपको दिखती होगी तो आई एम नॉट श्योर बट आई डोंट सी देम No, जेलिंग इन टर्म्स yeah. ऑफ देयर फुटबॉलिंग व्हाट दे थिंक अबाउट फुटबॉल तो Fair अगर enough. I do completely agree. Partially, I'm sorry. I हाँ partially हाँ agree, and your point is fair enough, and it's a valid one. But let's say कि जैसे कि we've seen reports कि टेन हाग को we will say कि टेन हाग तू भाई सिर्फ फुटबॉल ही देख तो पीछे का जो भी बैकरूम होगा डायरेक्शन होगा जो रिक्रूटमेंट होगा विल सॉर्ट दैट आउट यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द प्लेयर्स एंड इन द गेम्स यू हैव टू प्रिपेयर सो अगर वैसे हम पोचेटिनो को भी दे वो काइंड ऑफ रोल कि भाई तू छोड़ दे तू खाली फुटबॉल देख सो दैट विल आल्सो सूट हिम नो maybe yeah ठीक है totally I क्लैशेस तो agree होने वाले इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स कि मुझे ये चाहिए वो तो टेना के साथ भी हो सकता है टेना बोलेगा मुझे ये जी चाहिए रैमिक बोलेगा नो दिस इज मोर सूटेबल वो तो हम्म होने ही वाला है वो डिफरेंसेस कभी ना कभी तो होंगे बट आई yeah फील कि रिगार्डलेस ऑफ जो भी होगा उसको टाइम चाहिए होगा और कि दोनों को ही जो भी आएगा उसको बोलो कि भाई तू खाली फुटबॉल देख बाकी का पीछे का हम संभाल लेंगे गौरव क्या लगता है आपको नहीं, मेरे को बस ये है कि जैसे कि आपने बताया वो कैरेक्टर के लिए पहुंच का मुझे बस ये लगता है कि वो उसकी शक्ल से दिख जाता है कि वो पीएसजी में खुश नहीं है उसके पास वो कंट्रोल नहीं है प्लेयर्स का स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि वो बस अपना काम चला रहा है उसको क्योंकि एक तरह से पता चल जाता है कि मैनेजर क्योंकि मैंने कॉन्टे जैसे मैनेजर्स देखे वो अपने आप को यानी इन्वॉल्व करते रहते हैं पॉज बस खड़ा हो जाता है उसको लगता है कि बॉडी अब लैंग्वेज भाई अब हाँ वो कि अब गए अब डर लग क्योंकि जब वो कंसीड करे थे वो पहला गोल रियल के खिलाफ उस टाइम उसके बाद ही उनके पैर कांपने लगे थे फिर उसने सब्स्टिट्यूशन पता ही नहीं चल रहा था कोच को मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से जैसे जावी के पास पावर अभी बार्सिलोना में दे रखी है ना कि मुझे लगता है कि प्लेयर्स भी जावी के लिए खेलना चाहते हैं तो मैं भी एटलीस्ट एक्सपेक्ट करता हूँ कि टेन हैग के लिए भी प्लेयर्स खेलें ये बस क्योंकि मैं तो अभी नया हूँ नहीं ना वो तो मुझे उतना नहीं पता हाँ वो तो पहुंच के लिए भी खेलेंगे ऐसा कुछ नहीं है बट द थिंग इज there is one question that I have do you think there will be a major change in our transfer policy considering each manager कोई भी एक आए तो how do you think अपना transfer strategy क्या होगा if Poch comes and transfer strategy क्या होगा if Ten Hag comes based on what you've seen in their games मैंने जिस तरह से अभी विघ्नेश भाई ने बताया कि वो एक अपना ऑरा लेकर आता है तो पहली हम्म, बात वो आएगा अपने पास तो वो अपनी शर्तें लेकर आएगा कि मुझे ऐसे ऐसे चाहिए और रैगनिक भी कुछ उसमें ऐसा देखा होगा ना अपने जैसे कि वो उससे रिलेट कर पा रहा है मुझे जी लगता है कि पॉच को ऐसा है कि मुझे बस यही डर है कि पॉच को वो फोर्स ना करे कि भाई हमारे पास इतना ही है इस टाइम पे इतना ही पैसा मिलेगा तुझे जो करना है इसी मार्केट में करके ऐसे ऐसे बनाना है तो लेकिन इस टाइम पे टेन हैग को Watch अगर can do बोलेगी तो that. टेन Watch can do बट that. पहुंच Not लेकिन that. हम और कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना एक तरह से 10x यानी कुछ No, तो अपना अब कुछ नया सिस्टम वगैरह कुछ बताएगा कि हमारे को ऐसे ऐसे वो इनपुट doesn't तो matter. 10x दे ही सकता है डजेंट मैटर देखो आप हम जो एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं ना देखो अंतर क्या पड़ेगा एज अ फैन बेस पॉचिटिनो आएगा ना तो वी विल एक्सपेक्ट ट्रॉफीज राइट अवे एरिक टेन हाग आएगा तो ये फैन बेस विल वेट फॉर 2-3 years टू एक्सपेक्टिंग अ ट्रॉफीज आफ्टर दैट तो आई थिंक दैट विल बी अ बिगेस्ट difference between Pochettino and Eric Ten सॉरी Hag टू coming to कट United. प्रत्युष बट अगर पोचेटिनो आता है ना तो जब ओले गुनर सोल्शार का वो दो भाग बन गए थे ना फैन ग्रुप के वो वापस हो- बनेंगे होगा आई डोंट थिंक टेन हैग में ऐसा होगा आई नहीं डोंट नो नहीं दैट्स वो जस्ट होगा अ एब्सोल्युटली फीलिंग बट if Poch नहीं starts delivering ना टेन हाग में भी होगा जो होगा टेन हाग में भी पॉच के होगा साइड में होए वो डिवाइड होने ही वाला है डिवाइड होने सो वाले हैं हाइव तो हाँ वो जो भी हाँ रहे दैट्स yeah. ओके द थिंग इज ना हमको वैसा बंदा चाहिए मेरे हिसाब से जैसे आपने बोला ट्रांसफर विंडो के लिए था पोचेटिनो
अपने एकेडमी से तो प्रमोट करेगा, बट ही विल नीड प्लेयर्स कंटिन्यूअसली फ्रॉम आउटसाइड। उसको दूसरे बाहर बाहर से ही प्लेयर्स चाहिए होंगे। एरिक Yeah. टेन हाग ऐसे सिस्टम से आ रहा है जहां वो मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स अपनी यूनाइटेड एकेडमी से उठाएगा। मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स वो कुछ कुछ पोजीशंस फिल करेगा, मतलब उस इन्वायरमेंट से ही वो आ रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि वो नहीं कर सकता या वो नहीं मांगेगा दूसरे प्लेयर्स को, ही विल आस्क, बट उसका इन्वायरमेंट ऐसा है ना एजेक्स का कि वो आएगा तो सबसे पहले इफ यू लुक एट हाउ थिंग्स आर गोइंग लेवल बाय लेवल, Ralph Rangnick is visiting our youth matches very very regularly. Very ठीक है, regular. बहुत रेगुलरली जा रहे हैं वो मैचेस में। सो ही इज लुकिंग एट डिफरेंट प्लेयर्स जो आ सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं इन द फ्यूचर, इन द कमिंग फ्यूचर। और बहुत सारे ऐसे मैचेस हैं जो कि टेलीकास्ट नहीं होते, अंडर 16 के एंड अंडर 15 के, अंडर 16 में अंडर 18 के भी बहुत सारे मैचेस जो नहीं टेलीकास्ट होते, अंडर 23 के हम देखते हैं मैचेस मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो उन मैचेस में भी जो नहीं टेलीकास्ट हो रहे हैं, राफ जाता होगा और वो वहां से प्लेयर्स उठाने का अगर सोच रहा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल गेट इनटू द माइंड कि एरिक टेन हाग माइट बी द वन हु इज कमिंग, क्योंकि वो वैसे ही बिल्ड करता है। ही बिल्ड्स हिज टीम बेस्ड ऑन द यूथ फ्रॉम द एकेडमी। एक होता है यूथ पे टीम बिल्ड करना, दैट डज नॉट मीन ऑलवेज कि आप एकेडमी से यूथ उठा के बिल्ड कर दोगे। यू कैन बाय 18 ईयर 19 ईयर 20 ईयर अपकमिंग प्लेयर्स जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा टैलेंट है। एक होता है कि आप एकेडमी से उठा के बिल्ड करो, दैट डिफरेंट थिंग। तो मुझे एरिक टेन हाग के ऊपर ज्यादा लगता है कि वहां पे हमारा ट्रांसफर पॉलिसी जो है ना, मोर फोकस्ड ऑन एकेडमी हो जाएगा, कि हमको एकेडमी में ही ऐसे प्लेयर्स लेकर आने हैं कि आज से 3 साल 4 साल 5 साल बाद दे कैन इजीली इंटीग्रेट इनटू द मेन टीम। पोचेटिनो में हमारा मेन फोकस रहेगा हाउ टू improve the current squad over the time of 2-3 years. So basically, we have to either decide between disintegrating the whole system and building a new thing, or basically वही के बैंडेज लगाओ। और I think यहाँ पे अगर हम पूरा स्पेक्ट्रम देखें तो पॉल मिचेल बिकम्स इम्पोर्टेंट। पॉल मिचेल का क्यों जाना जाता है कि एकेडमी और मेन टीम को इंटीग्रेट करने के लिए बहुत अच्छा पर्सन है, टू इंटीग्रेट बोथ एकेडमी एंड मेन टीम। तो ऑल लुकिंग एट दिस, पोचेटिनो भी आ सकता है, सेइंग द हिस्ट्री बिटवीन पॉल मिचेल एंड पोचेटिनो, बट आई थिंक व्हाट वी हाउ वी बहुत देर से तू रुका हुआ है, बोल। नहीं आई फील कि रिगार्डलेस कोई भी आ जाए, बहुत डायरेक्ट बात की है फुटबॉल एंथुसियास्ट ने यहाँ पे। वी वांट ब्यूटीफुल फुटबॉल, doesn't matter who comes. That's what he definitely means. It's which is why it's confusing, because we don't know how difficult it is, because भले ही कुछ लोगों ने सेटअप कर दिया अपना टीम्स ऐसे, but you go to see तो उनको कितना टाइम लगा है वो करने में। They have changed full squads over a period of 3-4 years before they started winning. उसके बाद वो प्रोसेस सेट हो गया तो they kept on winning. I'm talking about City. तो चलो छोड़ दो, City can now afford to sell this squad and buy another. They can do that. ये squad भी वो लोग, they can strip it off and build a new one. We can't. You go to see at Liverpool's method, they gave that manager time. They gave that manager the funds. They gave that manager because उसकी एक philosophy थी जो सेट थी कि मैं फुटबॉल ऐसे खेलना चाहता हूँ, और फैंस को भी अच्छा लग रहा था. They did not care about trophies at the beginning. So do we want that, or do we, because being United we are obsessed with trophies, man. We want to win. We want to challenge at least. अभी तो हम challenging phase में भी नहीं है. So that's what I think. Do we need someone who can reach us to that level like Klopp, or do we need someone who can be a Guardiola, not like in technical terms, but in terms of being a spender? Klopp ने भी किया है spend, I get it. विघ्नेश तू स्टार्ट करना जो भी बोलता है, एक मिनट बस इस बारे में बोल देता हूँ। मेरे प्रेफरेंस में आई वुड लाइक क्लॉप। डिफरेंस क्या है, लिवरपूल उतना भी नहीं स्पेंड करती जितना मैनचेस्टर यूनाइटेड कर सकती है। तो इफ अ क्लॉप वाज एट यूनाइटेड और उसका एक टीम बिल्ड रहता ना, तो उसका बैकअप अभी तक स्टार्ट हो चुका होता बनना, जो कि लिवरपूल अब स्टार्ट कर रही है विद अ फ्यू प्लेयर्स कमिंग इन। अब वो अपना स्क्वाड डेप्थ स्टार्ट कर रही है। अगर क्लॉप ने 2019-20 वाला सीजन जीत गया होता ना, अब 2022 में हम यहाँ पे खड़े हैं, he would have a very good squad depth दो सीजन। विघ्नेश I agree. अगर प्रेफरेंस की बात है तो in terms of Klopp, what Klopp did with Liverpool, I would want that process, because ठीक है, I'm fine with us not winning a trophy for another 2-3 years. It's okay, because long term we are seeing the results what Liverpool are producing at the moment. Because even though they haven't spent that much, they are still toe to toe with City.
अब टाइटल रेस देखो, there is a point difference between those two. City have spent so much, but Liverpool are still with them, you know. So मैं ये बोल रहा था कि regardless of, you know, coming back to the manager and how the transfer would, you know, go in either ways, अगर जो भी आता है तो I feel कि regardless of the manager कोई भी आए, प्रॉब्लम ये है कि you know, in every year or two we need changes. You need to, you know, do a small rehaul overall. freshening things up. Yeah, you need to freshen up the squad. Just say you see, yeah, you see Liverpool abhi initially they had Firmino, Salah and Mane ka front three. Then they bought in Jota. Okay, then they slowly integrated him and they moved Firmino out. Now Firmino is struggling to make it on the bench as well. Now they bought Luis Diaz. Okay, now Jota is struggling on the bench. So that competition is also there. वो freshness भी है squad में. ठीक है. Yeah. City Plus का you छोड़ go दो to because see, City. Yeah. Vignesh, every player wants to play for the manager there. And Exactly. मतलब ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड में ऐसा नहीं होता, but it looks like, you know, they are okay with sitting on the bench too, even at City. Yeah. Big players sit on the Exactly. bench, man. You need a manager with an authority कि भाई अगर ये मुझे बेंच कर रहा है, मैं जितना भी बड़ा प्लेयर हूँ, ये मुझे बेंच कर रहा है बिकॉज ये मैनेजर है. ये नहीं कि ये कौन होता है मुझे बेंच करने वाला. तो ये एटीट्यूड जो डिफरेंस है ना यूनाइटेड में, आई थिंक इट शुड बी. और ये अपने ये भी आंसर कर ही देते हैं. 9 मैचेस जीतना है भाई, बस जीतना Absolutely. है और कुछ नहीं करना. Not afford to lose. Can't Yeah. afford to lose. We lose 1 or 2 games, we are out of the top 4 confirm. अभी भी बाहर ही है, बट फिर तो यूरोपा लीग स्पॉट भी शायद बढ़िया है. चलेगा मुझे कॉन्फ्रेंस लीग से भी बाहर जाओ. कॉन्फ्रेंस लीग से बाहर जाओ. सीरियसली समझ में आना चाहिए कि कितना गंद मचा हुआ है क्लब में, टीम में क्या गंद मचा हुआ है ना, ऊपर हायरार्की को समझ में आना चाहिए भाई. अगर नॉट इन यूरोप तब समझ में आएगा. अगर इफ वी आर नॉट इन यूरोप देन ओनली दिस क्लब विल वेक अप. आई एम नॉट किडिंग. पूरी तरह मतलब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि ये समर भी नहीं होगा, वो साइनिंग्स वो भी हो जाएंगी. हाँ. Just a genuine question. Why do every Man United fan thinks Pochettino is not good? That's not true. Not every Man United fan thinks. He's done such a good. Yes, we know, and no one says he's bad. Slander चलता रहता है. It's just banter. Everyone knows he's not bad. Even Meath has confessed that he's not bad. Yeah. So it's just a question of perspective. Some fans see football in a different way, so they think that वो footballing style is not good. So yeah. नहीं, मेरे को एक चीज पूछनी थी. अगर हम टॉप 4 अगर नहीं सिक्योर करते हैं अगर, तो साइनिंग्स पे फर्क पड़ेगा? Absolutely. बिल्कुल पड़ेगा. I mean, this is not Gaurav. This is not the United of 2014-15 या 16 पकड़ लो, जिसमें even not getting top 4 would have been okay because every big player knew कि eventually लाएंगे top 4 पे आ जाएंगे. तो next year मैं Champions League खेल ही लूँगा. But अभी we are at such a phase where there is no guarantee to the player coming in कि अगले सीजन भी top 4 में होंगे कि नहीं. So वो depend करता है manager पे. If a manager comes, he will have a set of players who he knows also personally भी जिनको coach किया होगा और जो अभी अच्छे players हैं. So it would have a lot of good effect with the manager to contact these players and, you know, make something good for us even if we are not in top. Which is why I think Pochettino भी उसके लिए ठीक रहेगा और Ten Hag भी. They both have played, or they managed big players, great players and good players and great youngsters too. So it could be good both ways. अगर नहीं गए टॉप 4 में तो भी यूनाइटेड का पुल है, कभी जाएगा नहीं वो. I think हाँ बोल दीजिए. नहीं आप बोलो. I just agree कर रहा हूँ. I think with Ralph going from, you know, managerial position to that decision making position, इस season I don't see us having that much of an impact. आएगा. But Ralph का ट्रांसफर पॉलिसी ही बहुत डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट यूनाइटेड हैज बीन फॉलोइंग. तो ये टॉप 4 का इफेक्ट नहीं ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि वो उस तरह के प्लेयर्स को टारगेट ही नहीं करेगा. उसका प्लेयर टारगेट्स ही अलग रहेंगे जो कि अननोन रहेंगे, या इफ ही इज गिवन 100% अथॉरिटी ना, तो वो कभी भी आपको टी-शर्ट साइनिंग्स करेगा ही नहीं. दैट इज नॉट राल्फ्स वे. वो अननोन प्लेयर्स को लाता है, उनको बनाता है, एंड दैट इज व्हाट यूनाइटेड हैज बीन डूइंग. जब आप उठा के देखो हिस्ट्री में, यूनाइटेड कभी सुपरस्टार नहीं लाता था. And there was literally 2 superstars under Sir Alex Ferguson जो superstar बन के आए थे. One was Eric Cantona, the other was Robin van Persie, and both came when the I think Veron भी था ना. हाँ, Veron भी तो था जो स्टार था पहले भी. यूनाइटेड में आके नहीं काम किया. हाँ मतलब नहीं,
we signed stars in terms of, तो वो star already था before coming to हाँ, United. बट I think उतने बड़ा नहीं था लाइक व्हाट कैंटोना वाज एंड व्हाट रॉबिन वैन of पर्सी, course, मे बी of एक और course. था बबाटोव वाज देयर, वो भी एक, But वो भी हाँ, हाँ. बट उस लेवल पे नहीं था वो, दे वर गुड। तो उस लेवल पे तो सिर्फ दो ही लाए हैं अगर आप देखा जाए तो, एंड बोथ हैव मेड दैट टाइटल विनिंग डिफरेंस, दोनों में टाइटल विनिंग Owen, डिफरेंस। Michael Owen, माइकल ओवन वाज Yeah. जस्ट फॉर temporary. I get it, but he टेम्पररी, did वो he did सोच पे what he आया ही could. नहीं था, वो सोच के He साथ did. आया ही नहीं था। उसको बस एक टाइटल चाहिए था, हाँ, एंड He देन got उसको it. पता था कि वो आगे फ्यूचर में जाके इसी टीम को गाली देगा जिसने उसको टाइटल दिलाया. and Fucking and bastard. and if you look at what we built, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाज ऑन द होराइजन, बहुत सारे क्लब्स के नाम पे था, बट ही वाज अ गैम्बल था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाज अ गैम्बल व्हेन ही केम टू Yep. यूनाइटेड, रियो फर्डिनेंड वाज अ गैम्बल व्हेन ही केम टू यूनाइटेड, नेमांजा विटिच वाज अ गैम्बल व्हेन ही केम टू यूनाइटेड, Wayne Rooney was coming up very very strongly, but still was too young, very much of a gamble when he came to United, but ठीक है, mentality different अब लगता But है, उस टाइम Pratish, पे वो gamble ही do था। you do you think what helped them get into the squad was because Sir Alex को पता था कि how he has to run things? Do you think Sir Alex was three people doing, like one person doing three people's job Yeah, at the club? that was one of the biggest reason, क्योंकि जब वो गए तो एक बहुत बड़ा void create हो गया इन यूनाइटेड, क्योंकि बहुत सारे डीओएफ का काम भी वही कर रहे थे, टेक्निकल डायरेक्टर का भी काम वही कर रहे थे, स्काउटिंग का Hmm. काम भी उन्हीं का चल रहा था, मैनेजिंग भी उन्हीं का था, तो वो जिस स्कूल ऑफ थॉट से आए थे ना, वहाँ वैसे ही चलता था इन 80s So एंड 70s, वही I वही काम होता था। controversial नहीं रखना चाहता हूँ मैं कुछ, but do you think that Sir Alex should have handled his retirement plan better? आई थिंक वो प्लान रिटायरमेंट ही नहीं था। इफ यू लुक एट हिज इंटरव्यू ना, जो वो बाद में आया, तो हाँ he हाँ. said in one of his interview that his sister died, and he suddenly realized कि he has to give time to his family as well, तो तो वो मिड भाई सीजन हाँ. उन्होंने डिसाइड किया, तो वो कुछ प्लान कर ही नहीं सकते थे, सो इट्स ओके जो भी हुआ, सो दैट्स वन नहीं, थिंग, बट कभी ना कभी तो वो रुकने ही वाला था, कभी ना हाँ, कभी he was कभी going ना to कभी तो retire at some रिटायर, stage. The problem is कि what United, हम we couldn't replace him properly. no, nobody can replace Sir Alex Nobody Ferguson, can replace nobody him. can replace Sir Alex Vignesh, Ferguson। and I was talking about more on the sense of succession. कि अगर मैनेजर को पता है कि मैं 20-25 साल से क्लब में मैनेज कर रहा हूँ, so 2 years before I leave, I should start planning a rehaul or overhaul of the squad, or bringing in some players for the next manager to settle in into his philosophy. I mean, I'm Yeah. not saying कि buy करना चाहिए था उनको players, but वो एक planning हो जाती ना अगर 2 साल की भी, तो he could have coached a manager कि भाई how do things run here or whatever. भले ही वो मैनेजर का फिलोसफी अलग होता, बट एक क्या बोलते हैं उसको, स्मूथनेस आ जाती है ट्रांजिशन में. सक्सेशन प्लान रहता, हाँ, वो ट्रांजिशन में स्मूथनेस आ जाती है, एंड एट वो दैट टाइम कभी आई नहीं थिंक आती विदित भाई, वो कभी नहीं आ नहीं सकती आती. थी। वो रीजन, दो दो बहुत मेजर रीजन है। एक, टू फिल इन द बूट ऑफ सर एलेक्स फर्ग्यूसन वाज इम्पॉसिबल जॉब, इट्स इट्स इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल जॉब, इम्पॉसिबल. क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही डिफरेंट था, उस लेवल पे एक्सपेक्टेशन ही डिफरेंट था, एंड एट दैट एग्जैक्टली. पॉइंट ऑफ टाइम मे बी पेप गार्डियोला वाज कमिंग अप। आज हम देखते हैं पीछे तो को लगता है पेप गार्डियोला कुड हैव डन दैट। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ एक एक क्लब को मैनेज किया था, उस क्लब में भी उसके पास मेसी, ज़ावी, इनिएस्टा टाइप के प्लेयर्स उस लेवल पे खेल रहे थे, Why तो I say, वो why भी I एक discuss गैम्बल this होता। is because मैंने बहुत लोगों से ये सुन लिया कि partly Sir Alex Ferguson is responsible for where United is right now. जो See, मुझे मैं yes, agree नहीं करता हूँ, I but don't yes, agree with that. I agree I with don't. partially, मैं agree करता हूँ, क्योंकि after Ronaldo left the club, कोई rebuild नहीं हुआ, कोई rebuild नहीं हुआ, major rebuild नहीं हुआ इस club में। The major reason I think what Glazers missed at that, या what board missed ना, was to let David Gill go. डेविड गिल को जो Yep. हमने जाने दिया था ना उस सीजन में, और विद अ न्यू मैनेजर कमिंग इन एंड अ मैनेजर 26 इयर्स फ्रॉम इन द क्लब, और वो हायरार्की और वो ईगो एंड दैट persona going out from the club, and then you are letting David Gill who runs football in the background, उसको भी जाने दिया हमने। We brought in Ed Woodward, जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था विद फुटबॉलिंग वर्ल्ड, वो एक सिंपली एक सीए है एज सच, ही Yeah. वाज जस्ट अ सीए टाइप का Hmm. बंदा है वो। और हमने डेविड मोइस को उठा के ला दिया, जिसका एक मेंटालिटी डिफरेंट था फ्रॉम एवर्टन, जो एक मिड टेबल या यूरोपा के लिए फाइट करती थी, टू अ क्लब जो सीधा सीधी चैंपियंस लीग और टाइटल्स के लिए फाइट कर रही है। सो देयर Yeah. वाज अ ह्यूज गैप इन द मेंटालिटी,
और उसका एक्सपीरियंस, उसका एग्जांपल वही था व्हेन रियो फर्डिनांड एंड नेमेजा ब्रिटिश वर टोल्ड बाय यू नो मोइस टू गो एंड वॉच एवर्टन हाउ दे आर डिफरेंट. So Yeah. our players like Vidic and Rio Ferdinand who have won titles over years, उनको आप ये बताओगे तो फिर आपका मेंटालिटी डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है. So that was और and I won't say that मोइस को भी बहुत ज़्यादा मैं गाली दी क्योंकि वो इम्पॉसिबल जॉब में आ रहा था. Anybody coming in at that point of time at United would have failed. चाहे वो कोई भी रहे, X, Y, Z. Only one person, I think, who could have done the job that Sir Alex did, and that can be controversial, but that was Arsene Wenger. He was the only person at that point of time जो Sir Alex Ferguson का Not controversial, का Pratish bhai. respect. I actually wanted him to come, Actually wanted him to come, but he वो हुआ नहीं. That was not happening. वो Yeah, होने वाला नहीं था. वो But he was आर्सेनल the के only लिए one. उनका सर so, he was the only one who could have commanded that respect in that dressing room. yeah. जो रिस्पेक्ट सर एलेक्स फर्गूसन था. बाकी कोई भी एक्स वाई जेड आप किसी को भी ले आओ ना, उस ड्रेसिंग रूम में उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा. When we sacked Moyes, बोलो. When we sacked Moyes, I was actually hoping कि we should go for Wenger. भले ही वो थोड़े 2-3 साल के लिए but we should have gone for him. जो हुआ नहीं, obviously. But yeah, would have been a good choice. I think the biggest miss that we did was on Klopp going to Liverpool. That was our biggest miss. So hope अभी इसके आगे वो ना करे. हाँ, फुटबॉल एंथुसियास्ट भाई, I think he did decent there. उनको 2 डोमेस्टिक कप्स जिताए, बट चैंपियंस लीग ऑफ कोर्स जिस चीज के लिए गया था वो नहीं कर पाया. बट he won domestic double and league also एक बार शायद लीग भी जीता ना वो. So it was लीग तो हर सीजन जीता. लीग तो हर सीजन जीते वो. It was a different challenge for him, but it wasn't a challenge for someone like him. He was set. Bayern तो set ही है भाई. मुदीब भाई कोई solid rumors है? हाँ जी. So there is one big rumor that Tielemans का प्रत्युष अभी recent नया development ही आया है just आधे घंटे पहले that United are looking at him. I mean वो one of the players in the shortlist definitely है. So एक ही आया हुआ है. बाकी तिलक majority of the rumors are revolving around manager only. कोई फायदा नहीं है मेरे हिसाब से. इज अ वेरी गुड. मुझे कुछ पूछना है जी. मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे कि अगर जो भी मैनेजर आता है तो अगर हम टॉप 4 सिक्योर नहीं भी करते तो हम मैनेजर से क्या कौन से प्लेयर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अगर बाय चांस हमारी टीम को ज्वाइन कर ले. हैरी कैन स्कोर 2-1. क्या 2-1? लेट्स गो. पेनल्टी. फ्यूचर वर्ल्ड कप विनर्स. 2-1 हो गया. हाँ जी. चलो अच्छी बात है. गौरव का आंसर करो. जी. मैंने ये पूछा कि अगर जो मैनेजर आने वाला है मैनचेस्टर यूनाइटेड में तो वो अगर हम टॉप 4 सिक्योर नहीं भी करते हैं या करते भी तो वो कौन से प्लेयर्स को अट्रैक्ट कर सकता है हमारी टीम में आने के लिए. यार देखो, एवरी मैनेजर हैज अ सेट ऑफ प्लेयर्स हु आर देयर भक्ट्स. एवरी मैनेजर का फेवरेट प्लेयर्स होते हैं. वो प्लेयर्स उनको फॉलो करते रहते हैं फ्रॉम टीम टू टीम, राइट. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि कौन आएगा, बट जो भी आएगा इट्स गोइंग टू बी मोर ऑफ फर्स्ट सीइंग व्हाट ही हैज एंड टेस्टिंग व्हाट ही हैज. क्योंकि फ्री वाले जो प्लेयर्स हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है वो जाएंगे. सेल जो होने वाला होगा वो डिसीजंस वो लेगा. सो ही विल ऑलरेडी हैव एन आइडिया कि भाई मेरे पास स्क्वाड कितना है अभी, तो वंस ही हैज दैट आइडिया कि ये स्क्वाड मेरा यूनाइटेड का है, अब नाउ देन ही विल स्टार्ट थिंकिंग कि अब मुझे किस एरियाज में चाहिए. सो वो प्लेयर्स लाना इज गोइंग टू बी अनदर थिंग ओनली बिकॉज ही फर्स्ट हैज टू डिसाइड द प्रॉब्लम एरियाज. वो प्रॉब्लम एरियाज रैंकिंग ने ऑलरेडी डिसाइड करके रखे हैं. बट द प्रॉब्लम हियर इज द मैनेजर जो आएगा वो ऑलरेडी ये इसको पता होगा ये चीज़, बिकॉज रैंकिंग विल ऑफिशियली बी पार्ट ऑफ द इंटरव्यूइंग प्रोसेस और जो भी है मैनेजर का जो चल रहा है रैंकिंग रहेगा ही उसमें. सो ही विल फर्स्ट अलाइन बिफोर हैंड कि भाई ये स्क्वाड है, तुझे क्या चाहिए और तू क्या ला सकता है. वो भी इज गोइंग टू बी अ बिग फैक्टर हियर. सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टेन हैग, दे विल नॉट, इट्स नॉट लाइक दे विल थिंक कि भाई तू आईएक्स से 6-7 प्लेयर उठा के ले, ऐसा नहीं होगा. it's not going to happen that way.
I mean, he एक might दो get भी someone, चलेगा। but अरे इसको देखो नहीं, so it doesn't work that way with United, so it never works that way because Yeah. before even coming, अगर टेन हाग आ रहा है तो United will not even ask him कि भाई तुम्हारा ट्रांसफर टारगेट्स क्या है। उनको फर्स्ट बेसिक्स क्लियर करना पड़ेगा कि तुम करने क्या वाले हो विद दिस करंट स्क्वाड। व्हाट यूनाइटेड हायरार्की केयर्स अबाउट कि ये जितना पैसा स्पेंड कर रखा है ना, पहले इसको अच्छी तरह करके दिखाओ, फिर और पैसा आएगा। which is why I always keep telling कि ये साइलेंट विंडो होने वाला है, नया मैनेजर होएगा तो भी उसके लिए भी, बिकॉज दे विल फर्स्ट आस्क द मैनेजर कि भाई ये स्क्वाड को टेस्ट करो पहले, फिर तुमको दिखाएंगे कि तुम्हारा पोटेंशियल भी देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कौन होगा। लेकिन 1 और 2 न्यू प्लेयर्स तो डेफिनेटली होंगे, वो है। बट लेकिन मेरे को हिसाब से, आपके हिसाब से कि हम लोग कितना स्पेंड कर सकते हैं इस समर विंडो में? नॉट मोर देन 70, मतलब 70 मिलियन विल बी लाइक, अगर सेल्स नहीं किए तो, सेल्स किए तो वो एड ऑन, इट्स लेस आई नो, बट यही है। नहीं, कोई नहीं। सेल तो होगा, नहीं, मेक श्योर बी रेडी, सेलिंग तो सेल डेफिनेटली होगा यार। सेलिंग होगा। मुझे तो न्यूकासल से डर लग रहा है इस बार। मैं देखना चाहता हूँ कि हबीबी का पैसा कितना उड़ता है। अभी नहीं, थोड़ा अभी टाइम, टू टू ये टू मोर ये सीजन। समर भी स्पेंड नहीं होगा उनका ज्यादा। they will be stable, I think they will be stable enough के प्लेयर लेके आएंगे नो डाउट, बट आउटगोइंग्स भी करेंगे, फिर धीरे धीरे they'll build. I mean, it will be a यार good मीम्स वो interesting अलग, team to follow. गौरव वो मीम्स नहीं अलग, मिलेंगे। नो वो अलग ट्रैजेक्टरी पे चल रहे हैं, वो जा ही नहीं रहे हैं फॉर क्विक सक्सेस। उनका प्रोजेक्शन ऐसे है कि वो पहले अपना स्टेडियम्स को रिबिल्ड करेंगे, उसमें बहुत सारे चेंजेस लाएंगे। वो अपना वहाँ के जो यूथ सिस्टम है और यूथ स्टेडियम्स और ये सब है, वो सब को पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करेंगे एंड देन दे विल लॉन्च फ्रॉम देयर। वो गलती नहीं करना चाहते जो पीएसजी ने किया, वो गलती वो नहीं करना चाह रहे। सिटी ने भी वही काम किया था बहुत हद तक, कि उसने अपना स्टेडियम्स बिल्ड किए आते आते अपना यूथ स्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया। ठीक है, यूथ से आपको प्लेयर्स आए चाहे नहीं आए, लेकिन आपको जब वो चीजें रेडी रहती है ना, तो आप एक बड़े क्लब के रूप में लॉन्च होने के लिए रेडी रहते हैं। तो आई थिंक वो उस मुझे तरह तो से यंग देखते प्लेयर से भी बहुत उम्मीद है। Of course, क्यों नहीं, होनी भी चाहिए। नहीं क्यों वो लूज कर नहीं दो, क्योंकि if you lose that you will lose United as a club, विश्वास उड़ जाता है फिर। उन पे तो रखना ही पड़ेगा विश्वास, वही तो फ्यूचर है। नहीं, मैंने फुटबॉल जैसे सुना एंथुसियास्ट है, भाई। जैसे कि लिवरपूल के लिए ट्रेंट का एग्जाम, बोलो। लिवरपूल के लिए ट्रेंट था, और अभी जैसे बार्सिलोना के लिए वो गावी, पेड्री वगैरह, लामासिया से ही आया है ना। तो मैं भाई भी बहुत उम्मीद बारसा करूँ जो छोड़ दो, परफॉर्मेंस हम लोग दे रहे तो दो दो ऐसे है ना, बारसा का, लामेसिया और एयाक्स का, ये दोनों का जो है। और अगर इफ यू आर लुकिंग एट प्रॉपर्ली, अगर इंग्लिश स्ट्रक्चर में देखते हो, तो साउथहैम्पटन एंड यूनाइटेड, इन दोनों के जो यूथ सिस्टम है ना, लीग में, प्रीमियर लीग में साउथहैम्पटन यूनाइटेड लीग सिस्टम बहुत आगे कंपेयर टू एनी ऑफ द अदर्स। आई थिंक चेल्सी सिटी एक का है, भी है, सिटी का भी है, नॉट एट दैट लेवल, डिसेंट है। हाँ, मतलब डिसेंट लेवल नहीं नॉट है एट बट दैट लेवल। अगर एक और कोई बड़ा क्लब यूनाइटेड चैलेंज कर सकता है, दैट इज चेल्सी। हाँ। यूथ सिस्टम में वो अकेला है जो यूनाइटेड चैलेंज कर सकता है, बाकी नहीं, वो बहुत जैसे मैं ही है। एटलीस्ट बट उम्मीद उनसे इतना करता हूँ कि वो एटलीस्ट वो प्रेशर वगैरह भी झेले। जैसे चैलोबा आया था अभी चेल्सी के लिए, वो भी डल रहा है बट वो अच्छा कर रहा है। ज्यादा उम्मीद तो नहीं कर रहे ना। मुदित भाई क्या कर रहे हो आप? योर हेट मेक्स मी स्ट्रॉन्गर। अरे भाई, जीतेंगे देख भाई लेना भाई, बहुत हल्का भाई लेते हमको। ये हुई ना बात, मैं तो कतार में रहूंगा, उधर से गांड मारूंगा तुम लोग। अरे बस जीत पहले गई। यार वो साउथ गेट को तो सही कर ले यार। अभी नहीं, वो तो रहेगा ही, और सबसे बड़ा ट्रोल वही होगा कि इसके साथ भी वो लोग आगे जाएंगे, सोचो। हाँ। सपने नहीं, मैं तो सपने चाहता सुहाने था कि लड़क बनते हैं। सैंटोस और साउथ गेट को हटा के अपनी, क्योंकि दोनों कंट्रीज के पास टैलेंट है। अब तो पोर्चुगल के पास ये भी नहीं है कि हमारे पास सिर्फ रोनाल्डो है। तो पोर्टुगल मैं नहीं, मैं एक जैसे कि हाँ, डिबेट चलती कि कौन सा बेस्ट राइट बैक है इंग्लैंड में, यानी रीस जेम्स या ट्रेंट। आपके पास एक दोनों मिनट एक इंग्लैंड में मिनट मिलते एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये वही स्विट्जरलैंड टीम है जिसने फ्रांस को हराया था? इन्होंने ही हराया था ना? इन्होंने ही हराया था ना फ्रांस को? स्विट्जरलैंड ने नहीं हराया था। किसने हराया हैं। था अरे फ्रांस को? भाई, स्विट्जरलैंड नहीं, आई थिंक स्कॉटलैंड हराया था या आयरलैंड ने। नहीं नहीं नहीं, स्विट्जरलैंड ने हराया था पेनल्टीज में, यूरो में हराया था ना? स्विट्जरलैंड ने हराया था। हाँ हाँ भाई, याद करो।
हो सकता है यार maybe। अरे 5 अरे राउंड ऑफ प्रैक्टिस कर 16 रहे हैं भाई हम लोग, क्यों इतना 3-3 टेंशन लेते हो, प्रैक्टिस कर रहे हैं। 3-3 हुआ था। तो स्विट्जरलैंड इज नॉट अ स्मॉल टीम भाई, फ्रांस को नॉकआउट किया अरे था अभी यूरोज में। क्या यूरो में किसको नॉकआउट कर दिया था भाई? ए भाई स्विसी थे अमर भाई, मैंने अभी अभी देखा है, स्विट्जरलैंड फ्रांस, इट वाज 3-3 एंड देन 5-4 ऑन पेनल्टीज, स्विट्जरलैंड वन। चल नहीं, कोई नहीं, मेरे को एक चल क्वेश्चन पूछना है कि वहां पे पॉल वर्ल्ड पॉगबा है। कप में यानी ओलंपिक्स में ये, नहीं ओलंपिक्स में जैसे कि इंग्लैंड, वो नीदरलैंड्स और ये स्कॉटलैंड एक साथ मिलके ब्रिटेन से खेलते हैं, तो यानी ये फुटबॉल में क्यों नहीं होता? वैन डाइक मिल जाएगा भाई। नेदरलैंड थोड़ी खेलता है उसमें, नीदरलैंड नहीं नेदरलैंड खेलता एक है, साथ नहीं खेलता। सो सिर्फ इंग्लैंड होता है उसमें, स्कॉटलैंड होता है और नॉर्दर्न आयरलैंड होता है, तो वो ग्रेट ब्रिटेन अच्छा, बन के खेलते हैं, क्योंकि ओलंपिक्स में एज अ ग्रेट ब्रिटेन आप रिप्रेजेंट करते हो, इसलिए रिप्रेजेंट वहाँ करते पे वो तीनों कंट्री मिलके आते हैं, और फीफा वर्ल्ड कप में एज इंग्लैंड आप रिप्रेजेंट करते हो, इसी भी आते हैं। Karan, good question. I think a striker, I think will be our third choice if we speak. Ronaldo एक और season रहेगा ही, और full minutes भी नहीं रहेगा, तो we might have to change and play someone else as striker. Maybe, I don't know, but क्या Rashford वापस खेल लेगा या I don't know, but striker definitely नहीं आ रहा है Yeah, we need a striker. later. हाँ, नहीं बड़ा थोड़ा बुरा लगता है कि जैसे कि अभी हमारे प्लेयर्स कंसिडर नहीं हो रहे इंटरनेशनल लेवल पे, एक दिन होंगे, क्यों नहीं होंगे? हैं। मोहित भाई, तू सबसे आप भाई नाराज मतलब मुझसे क्या है क्या ही बताओ। बोले, मतलब ग्रीलिश को आप सांचो के हेड अरे पिक करते हो तो मतलब बड़ी बात है। अरे वो क्या बोले भाई, वो कैसा आदमी है, फॉर्म के नाम पे सिलेक्ट करता है और मैगवायर को ले फॉर्म जाता के है, ठीक है, और फॉर्म के, हाँ वही वही फॉर्म की वो बात कर रहे सैंचो हैं को आप। ड्रॉप कर देता है। अरे पर्ची पे खेल 10 रहा है क्या मैगवायर? ये एक ऐसा कोटा 10 सिस्टम थोड़ा ना चल रहा है कि भाई एक मैनचेस्टर को उठाना है, एक लेस्टर का उठाना है, चार इसके सिटी के उठाने हैं। किसको खुश कर रहे हो भाई? जीत गए तिलक, we won, गौरव। जीत गए? ग्रीलिश इज नॉट अ बैड प्लेयर, बट ग्रीलिश बहुत बढ़िया प्लेयर है, बहुत जबरदस्त नहीं है, प्लेयर है। बट प्रतीश भाई इन द लास्ट साउथगेट 15 के गेम्स सिस्टम उसके के लिए। उसके स्टैट्स देखोगे आप, लास्ट 15 आई गेम्स डोंट 2 केयर गोल्स 2 विनेश, असिस्ट। यू नो मी, आई डोंट केयर अबाउट प्रत्युष स्टैट्स। hates stats, Pratyush I hate hates stats. stats. Stats don't स्टैट्स। tell you what is happening on the ground. अच्छा, एक 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 अच्छा बात तो बता मेरे को दिनेश, सो एक टेल बात मी, एक ग्रीलिश हैज बीन, एक एक ठीक है, फॉरगेट स्टैट्स, हाँ, ओवरऑल हैज ग्रीलिश बीन बेटर देन सांचो बट लेटली? ग्रीलिश इज नॉट अ पेप गार्डियोला टाइप ऑफ प्लेयर। वो गलत टीम में आके बैठा हुआ है पैसे के चक्कर में। हाँ वो नहीं यार, गलत टीम पे बैठा हुआ है। वो साउथगेट के सिस्टम में जहां आपको बॉल ड्रिबलर चाहिए, जो बॉल लेकर आगे जाएगा, ग्रीलिश इज ब्रिलियंट इन दैट। प्रेशर के अंदर बॉल को लेकर आगे जाएगा, प्रेशर रिलीज करेगा, फाउल्स लेगा। ही इज वेरी वेरी गुड फॉर दैट सिस्टम। तो क्यों नहीं खिलाएगा उसको? तो मैगवायर की कैसे सिलेक्शन बनती है, कोटा भाई चल रहा है क्या? मैगवायर छोड़ दो, दैट इज ठीक है वो। वो कोटा उस ही पे है, तो वो कोई कोटा ही है, कमेंट नहीं, नो कमेंट ऑन दैट। वो कोटा ही वो तो है। मैं सिर्फ ग्रीलिश का और सैंचो का बात, और सैंचो को वो आराम से यूटिलाइज कर सकता हूँ राइट विंग। स्टर्लिंग को ड्रॉप करो, स्टर्लिंग इज नॉट गुड इनफ। या स्टर्लिंग इज हाँ, नॉट गुड स्टर्लिंग भी इनफ टू ठीक प्ले ठाक है, ठीक। कंटिन्यूअसली फॉर इंग्लैंड। वो सिर्फ स्क्वाड प्लेयर हो सकता है जो कि बेंच से आके अपना काम करके नहीं जाए। लेकिन नहीं लेकिन इन बिग बिग कॉम्पिटिशंस इफ यू सीन, स्टर्लिंग कर देता है कुछ ना कुछ, कर पूरा देता है। गेम हगेगा, पूरा गेम हगेगा वो, लेकिन ही कम्स अप मुदित विद द मोमेंट, ही मुदित कम्स अप भाई, विद द मोमेंट। ठीक है वो कर देता है, वो बिल्कुल कर देता है। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो उसी मोमेंट में करते हैं, बट ही इज नॉट अ प्लेयर जो पूरा पूरा गेम अपने दम पे जिता के चल रहा है आपके लिए। वो मोमेंट क्रिएट कर देगा, मोमेंट आपको जिता देगा। आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए लाइक सैंचो, लाइक ग्रीलिश। रैशफोर्ड इज डाउन राइट नाउ, बट जब रैशफोर्ड के फॉर्म में रहता है, रैशफोर्ड कैन डू दैट। वो काम स्टर्लिंग नहीं कर सकता है द मोमेंट केन इज आउट ऑफ दैट टीम ना। अगर आप केन को उस टीम से हटा दो, स्टर्लिंग कुछ नहीं है। जिस तरह से सिटी में अग्वेरो को निकाल दो, स्टर्लिंग कुछ नहीं कर रहा है। द मोमेंट हैज अग्वेरो हैज गॉन, उनके पास स्ट्राइकर खत्म हो गया, स्टर्लिंग खत्म हो गया है। क्या दिख रहे हो आप 2 साल से स्ट्राइकर के बिना स्टर्लिंग को? आई नो, बट वो उनको उनका भाई सिस्टम ही ऐसा कि दे डोंट नीड अ या स्ट्राइकर। या नो, या बट जब उनका स्ट्राइकर था तो यही स्टर्लिंग वाज नो डिफीटिंग भाई, ऑल होल्डिंग, without striker their attackers have combined 87 goals this season. दैट्स ओके। मैं उसका It's बात नहीं not कर a रहा, मैं joke. इंडिविजुअली स्टर्लिंग का बात कर रहा हूँ, मैं सिटी का बात नहीं समझ कर No, रहा but हूँ। रहा। attack as a whole, स्टर्लिंग इज without a striker as well, attacking unit आपका 87 गोल प्रोड्यूस कर रहा है। Not a करेक्ट, joke, no? नॉट अ जोक, बट स्टर्लिंग क्या कर रहा है उस अटैकिंग सिस्टम में? जब अग्वेरो Still, था recently जब scored a अग्वेरो hat-trick, था no? तब स्टैट्स उठा के देख ले स्टर्लिंग का।
मेरे हिसाब से वो स्टैट्स जब उस पे प्रेशर पड़ता है तो वो भी उसका हाथ पैर फूल जाता है स्टर्लिंग का, मैंने ये देखा है। उस तरह का प्लेयर ही नहीं है यार, वो उस तरह का हाँ, प्लेयर नहीं है, और ये लोग बहुत थोड़ा सा मोमेंट्स का प्लेयर। इतना ऐसे बोलते हैं कि विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हैं, इतना भी नहीं करना चाहिए। हाँ, रेसिज्म गलत है, नहीं होना चाहिए, बट इतना भी नहीं, प्लेयर पैराग्राफ था लिख दो आप। वैभव भाई, स्टर्लिंग इज अ गुड प्लेयर, ही इज नॉट एट दैट लेवल जहां पे आपको वर्ल्ड कप जिता के दे दे। मेरा बोलना ये है, इफ इंग्लैंड फैंस एंड इंग्लैंड टीम वांट्स टू विन द वर्ल्ड कप, यू नीड प्लेयर्स फॉर दैट जिनका मेंटली वो उस लेवल पे रहे। आपके पास पर है प्लेयर्स वो इन इंग्लैंड, अगर आप पूरा स्ट्रक्चर अपना पूरा प्रीमियर लीग को आप सही तरीके से एनालाइज करें तो आपके पास बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि वो काम आपको कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप ये बायस छोड़ दें कि हमको टॉप 4 टॉप 5 टॉप 6 टीम से उठाने हैं प्लेयर्स। या आप इक्वली सारे प्लेयर्स को देखो, कौन आपके लिए परफेक्टली सूट करेगा, आप उठाओ, बहुत अच्छी अभी लुक शॉ भी, टीम में बन सकते हैं। हाँ, अभी लुक शॉ भी डिजर्व नहीं करता था, कैसे आ नहीं गया करता, टीम में ओवरवेट। भाई गोल भी तो मार दिया आज। नहीं, उससे क्या, हाँ। ऐसे तो उसने यूरो में भी मार दिया था, क्या हो गया, हार गए ना। अरे भाई साहब ऐसे दुख मत दे यार। आई थिंक ऐसे क्या ये बोल। रीस जेम्स किस इंग्लैंड का ही है ना, रीस जेम्स? हाँ, रीस जेम्स इंग्लैंड, वही तो बोल रहा हूँ कि ट्रेंट और नहीं रीस नहीं, जेम्स की लड़ाई होती, कौन रीस बेस्ट है, दोनों इंग्लैंड के लिए खेलते रीस हैं। जेम्स इंजर्ड है ना फुटबॉल फिलहाल, एंथुसियास्ट भाई, तो अभी जेम्स ज्यादा बोल स्ट्रगल रहे कर हो रहा है आप। इंजरी से। नहीं मैं वर्ल्ड कप 5 के मिनट बारे में बात कर 5 मिनट के लिए बैन कर दूंगा मैं आपको फुटबॉल एंथुसियास्ट भाई, बस हो गया। क्या हो गया? तो जिसको पता नहीं है, मुदीत भाई ने प्रेडिक्ट किया है कि हैरी मैग्वायर हाँ, विल स्कोर अ गोल इन द फाइनल अरे इन द नहीं, वर्ल्ड मुझे कप, तो जो डर लग कि रहा था। इंग्लैंड को जिता देगा। नहीं, मुझे डर लग रहा था, वो कौन सा मैच था स्पर्स के खिलाफ, भाई तुझे हैरी मैग्वायर के पैसे दिए हैं 80 मिलियन, तो हैरी केन गौरव किस लिए बन रहा है गौरव भाई? गौरव एंगल चेंज कर, लाइट के कारण तू एकदम डार्क आ रहा है, तेरा चेहरा पे अरे दिख हाँ। जादू बन सो गया दोनों के लिए। बोलो वर्ल्ड कप अरे सेमीफाइनलिस्ट क्या है तुम्हारा? अरे अर्लीस्ट यार, ये क्या हो प्रेडिक्शन, गया? अर्लीस्ट। वाह, वेरी ये अर्ली। बहुत ज्यादा अर्ली है, बहुत ज्यादा अर्ली है। आई थिंक लोग अरे दो यार, दिन क्या पहले हो? इटली प्रेडिक्ट कर रहे थे जाएगा थ्रू। इटली आई बाहर हो थिंक गया। फ्रांस विल बी देयर, फ्रांस विल बी देयर, जर्मनी विल बी देयर, स्पेन विल बी देयर, और चौथा पोजीशन के लिए फाइट होगा। ये तीन रहेंगे। फोर्थ पोजीशन के लिए आपको फाइट रहेगा देख ब्राजील, प्रत्युष। इंग्लैंड हाँ और हाँ। नहीं रहेगा इंग्लैंड। इंग्लैंड इज नॉट अ इंग्लैंड बैड नहीं, टीम, इंग्लैंड इज नॉट अ बैड इंग्लैंड नहीं टीम, होगा। आई डोंट सी टीम बढ़िया इंग्लैंड है जाएगा इंग्लैंड सही। की। इंग्लैंड, ब्राजील एंड आई थिंक पोर्टुगल के बीच में, या अर्जेंटीना, पोर्टुगल और अर्जेंटीना दोनों रह सकते हैं। ये चार पांच टीम है विघ्नेश। जिनके बीच में फोर्थ पोजीशन मिलेगा। तीन आपको इंग्लैंड अभी नहीं क्लियर जाएगा। है। हाँ तो ठीक है, तेरे 4 तो बोल। आई थिंक फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और ब्राजील। तिलक। तिलक क्या था, किसका बोल रहा हूँ इनका? तू बता भाई। गौरव। मेरे को तो लगता है कि जैसे कि एक तो इंग्लैंड फॉर श्योर, दूसरा होगा ये फ्रांस, तीसरा होगा ये, मुझे बेल्जियम लगता है, और चौथा स्पेन। इंटरेस्टिंग है। बेल्जियम बेल्जियम ऑल्सो नहीं इज अ गुड मैं शाउट जीतेगी, या। बेल्जियम नहीं जीतेगी। बेल्जियम गौरव इसीलिए मैं मेंटालिटी। मानता बट हूँ बट बेल्जियम के वोंट गो फार, या मेंटालिटी नहीं है, वोंट गो फार। मेंटालिटी नहीं है, और जो टीम बहुत प्लेयर्स हम हार्ड है लोग को उनकी। दिख रहे थे अभी, वो प्लेयर वो भी वैसे नहीं रहे अब, जो 4 साल पहले थे। मैं एक पंट ले रहा देखा हूँ, जाए क्या पता चल जाए। हम भी तो आप भी तो हैरी मैग्वायर का गोल लेके पंट ले रहे हो, चल गया तो। भाई, पंट नहीं है ये, पंट पंट का भी पंट है ये। सो आई एम गोइंग फॉर ऑफ कोर्स इंग्लैंड। यार, उसका स्टैचू बन जाएगा मेरे हिसाब से, उसका स्टैचू बन बनेगा, जाएगा। बनेगा। सर मगवायर। मैं बोल रहा हूँ बनेगा। मैं बोल रहा हूँ तो इनको जब मैं पेलूंगा ना वो स्ट्रीम पे, जब ये होगा तब देखना तो बहुत बहुत बढ़िया सीन रहने वाला है। बस सो आई आई आप गो फॉर दुआ इंग्लैंड। करो। आई तो कहीं ऐसा ना हो जाए वो ओन गोल मार दे वर्ल्ड कप ए, फाइनल अरे ए, नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आपके हिसाब से, मैं तो, अगर वो टीम में ही नहीं हुआ तो, होगा होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि कैसी नहीं, बात कर रहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मैं जीतने के लिए खेल रहा हूँ, हारने के लिए थोड़ा ना खेल रहा हूँ। है? ठीक है, मेरा सुन लो अब। आई एम थिंकिंग इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस एंड नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स। Netherlands, I don't see इंटरेस्टिंग। Netherlands. Netherlands are good team, but they're not good enough. They will be क्यों the नहीं? quarters, quarters तक रहेंगे वो, but I think quarters में वो बाहर चले जाएंगे।
they are a good team, no doubt. They are a good team. नहीं Netherlands मेरे will को go to जैसे the ये semi-final with Van de Beek scoring the winner in quarter-final. If अरे they get बाप into the अरे semi-final, na, भाई मत Udit bhai, मत मत if करो they ये। get into the semi-final, na, they have a good chance of अरे going to the भाई final. फिर हम Olympics They बोलते will हैं have कि a स्क्वाड में भी very very नहीं good है। chance. If नहीं फिर क्या हम बोल रहा? बोलते हैं कि इंग्लैंड मीडिया हाइप कर देता है, हम भी तो वही कर रहे हैं। नहीं मेरे को ये इसके चीज यहाँ क्या पूछनी है, होगा? जैसे कि अभी 1 तारीख को सुल्तान वर्ल्ड कप का ड्रॉ है, तो आपको लगता है पोर्चुगल वर्सेस अर्जेंटीना हो सकता है अगर पोर्चुगल पहुंचती है तो? नहीं, वो इतना नहीं ग्रुप अर्ली स्टेज में, रोनाल्डो वर्सेस मेसी नहीं करेंगे। हाँ ग्रुप स्टेज में कुछ भी नहीं हो करेंगे। सकता है यार। हाँ Who मुझे लगता knows, है वो हो ऐसे नहीं सकता है। नॉकआउट के लिए सेट करेंगे दोनों को। ये जबन सबसे नहीं बेस्ट रिग्ड तो प्रेडिक्शन। होता ही है, रिग्ड तो हो सकता है। वो रिग अरे वैसे करेंगे ना भाई कि वो रिग ऐसे करेंगे ना कि रोनाल्डो एंड मेसी मीट समवेयर इन द नॉकआउट स्टेज, क्योंकि रोनाल्डो और मेसी दोनों का लास्ट वर्ल्ड कप होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली। बोथ ऑफ देम विल बी प्लेइंग इन द लास्ट वर्ल्ड कप, तो वो उनको ऐसे रिग करेंगे कि वो दोनों अगर हो तो नॉकआउट में कहीं पे मिले। अरे नहीं भाई, यार ऐसा मुझे क्या वैकेंसी डर नहीं तो है। लगता है नॉर्थ मैसेडोनिया से, मुझे लग रहा है डर। सबको लगेगा। डोंट वरी, रोनाल्डो विल सी थ्रू इट। अरे रे, अगर इन्होंने अरे पोर्चुगल वो को हरा दिया ना, अगर हरा बुकील दिया, एल्मास ने रिटायरमेंट ले ली। हाँ लेगा ही ना, और कितना खेलेगा बुरा खेल बस हो गया। नहीं भाई क्या प्रत्युष बता दी। प्रत्युष सोचना यार, अगर मैसेडोनिया ने जीत कर लिया क्वालिफाई। हार्ड हो जीत लेना सर। जाएगा। बट यार बट वही मैंने उस दिन भी बोला था, मैं आज भी बोलूंगा, मैसेडोनिया इस इतने हाई अप गेम में, इतना हाई अप एक्सपेक्टेशंस के साथ कभी नहीं होती, या एक्सपीरियंस ही नहीं होती। वो उस प्रेशर में वो बकल अप कर जाएंगे। इट इफ कैन दे गो ऑल्सो थ्रू पंप दिस, देम, इट इट कैन कैन आल्सो ऑल्सो पंप पंप देम। बट मुझे भाई कभी कभी क्या होता है ना, जब आप ओवर पंप रहते हो ना, तो आप ऐसे मिस्टेक्स कर देते हो गेम में जो कि आपको पूरा गेम लूज कर सकता है। दिस The तिलक, reason दिस the reason why दिस इज Spurs didn't won the Champions League final against Liverpool was that same thing. Over expectation था Spurs के लिए, फर्स्ट टाइम जी द फाइनल्स पहुंचे हैं। They were not a bad team. भाई। इस नहीं ये तिलक, ये चीज देखने से अच्छा तो इंग्लैंड ही जीत जाए वर्ल्ड कप भाई। ये जो देखना मुझे, अरे भाई ये हो ये गया नहीं तो फीफा देखना। करियर मोड में हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। फीफा करियर मोड में तो मैं मेसी और रोनाल्डो को साथ ही खिला दूं। अमर भाई, मेरे को पोर्चुगल से खुन्नस नहीं है, मुझे किसी से भी खुन्नस नहीं है, मुझे सैंटोस से भी खुन्नस नहीं है। मैं बस कंपटीशन देख रहा हूँ और कुछ नहीं। हाँ सही बात है, हमें तो इंग्लैंड से मतलब है, बाकी जाए हाँ सारे ये भाड़ में। I agree. हाँ अगर ये हो जाए ना, Mourinho can actually do some work at Portugal. Brilliant आई work थिंक at नहीं दिस मे- दिस विल बी दिस विल बी द परफेक्ट जॉब फॉर मोरिनो। yeah. At Yeah, this point नहीं of मेरे time, को एक चीज perfect job. पूछनी आई है, होप ही गोज टू बिफोर मेरे रिटायरमेंट को एक वो चीज चाहे पोर्चुगल आए। कि ये जो हाँ भाई, मैनेजर रोल्स वगैरह होते हैं इंटरनेशनल, तो ये सेम नेशनैलिटी के बंदे ही कर सकते हैं, दूसरा वाला नहीं कर नहीं सकता? वैसा कुछ नहीं, ऐसा थोड़ी है, वैसा अच्छा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं, थोड़ी है रे। अभी हमने मुझे पता फैबियो छोड़ना है, कपेलो फैबियो कपेलो वाज इंग्लैंड्स मैनेजर। नहीं पता। वही मुझे गैरेट साउथगेट पता है 2018 से। अच्छा ये अभी वाला है, ओके ठीक है कोई नहीं। ऐसा कोई कोई जरूरत नहीं। अरे एग्जांपल नहीं, ले ले, वैसा इंडिया कुछ का ही ले ले, इंडिया के पास खुद इंडियन इंडिया कोचेस का नहीं ले है। लो, हाँ निकोस इनगॉट्स टीमैचर, ठीक मैं हाँ यार, क्रोएशिया है ना। लेकिन लाएंगे भी हम किसको यार, मेरे को तो यही डर लगता है, दे आर सैम आना अलोलाइस कौन को लेंगे। चाहेगा? इंडिया का बात कर रहा है, नहीं इंग्लैंड का। इंग्लैंड का बात कर। इंग्लैंड सैम जैसे अलोलाइस पोर्टुगल के लिए तू बोल रहा है ना मुरीनो, परफेक्ट है वो। पोर्टुगल के लिए तू मुरीनो बोल रहा है ना, मुरीनो विल बी परफेक्ट फॉर इंग्लैंड जॉब एज वेल। विद द काइंड ऑफ प्लेयर्स आपके पास, सैंचो है, स्टर्लिंग है, रैशफोर्ड है, ग्रिलिश है, विद द यानी काइंड ऑफ काउंटर अटैकिंग पेस यू हैव, या जितनी बार उसने ड्रेसिंग रूम खोया है ना, वो आएगा ही नहीं इंग्लैंड की जॉब। इट डजंट मैटर। वो मस्ती कर नहीं कहीं भी आ जाएगा। मुझे तो साउथगेट सैंतोस का पोता लगता है एक तरह से, दोनों ही डिफेंसिव। क्या कर सकते हैं। और पॉच का भाई जो बात है, मुझे उसको वो उसमें भी वही है, वो थोड़ा सा हा हा हू कर लेता है, ये बस जीत रहे हो तब, वरना तो मुंह से ऐसे बनती है उसकी शक्ल, वो भी क्या कर सकते हैं। गया प्रत्युष, चला भी गया।
नींद आई कोई उसको। नहीं। नींद आएगी। चलो गाइस, हम भी निकलते हैं कल टैक्स। हाँ प्रत्युष भाई, अब मैं वी आर क्लियरिंग द स्ट्रीम। So before closing this, जितने भी लोग देख रहे हो प्लीज लाइक कर देना यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट विल ब्रिंग अप टू यू। नहीं, अगर मेरे को if you एक want चीज to be पूछना part है, of this बोलना discussion, है आपसे। yeah, मेरे को ये चीज बोलना है कि आप जैसे टारगेट दे रहे हो कि इतने सब्सक्राइबर्स पे ये जर्सी दे देंगे, आप ये सब जर्सी मत ही करो ना। हमको कंटेंट देखने से मतलब है, गिव अवे से कोई मतलब नहीं है। अरे गिव अवे उस हम लिए नहीं है, गिव अवे का रीजन इज नॉट टू इंक्रीज सब्सक्राइबर। हमारे नहीं, पास मैं है, वो हम बोल रहा शेयर हूँ, करते नहीं वो बात नहीं है, हम सिर्फ कंटेंट के लिए आते हैं। यानी लोग बहुत देखे हैं मैंने कि लोग गिव अवे के लिए चैनल yeah, पे ज्वाइन करते हैं, हम वो नहीं है। that's appreciated. मेरा ये That's कहना है। appreciated. Yeah. थैंक यू सो मच। बट वही है कि वील कीप That कॉलिंग means a एनी lot. ऑफ यू। Yeah. अगर आपको जब किसी भी आना कोई हो, आना जस्ट भी ड्रॉप इन अ चाहता है, मैसेज हाँ ऑन मैं एनी। और नहीं, जितने भी लोग देख रहे हो, अगर आपको आना है, if you want to be the part of this panel, want to be part of the show, please हमारे initials है in the subscription, sorry, in the link. You can contact us anywhere, wherever you feel comfortable with. We'll make sure you'll be here. और please do follow us. और अपना इंस्टाग्राम पेज भी है, ट्विटर पेज भी है, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग। आपका सपोर्ट, आपके लाइक्स मीन्स अ लॉट। और ऐसे ही देखते रहो, जैसे गौरव भाई रोज देखते हैं रात को सोते सोते। अरे तो बहुत अच्छा। नहीं, मैं मीन्स अ ऐसे लॉट। आपका ही नहीं, मैं सबके चैनल देखता रहता हूँ। मैं तो रात को पॉडकास्ट मुझे बहुत पसंद है। ये नया हॉबी आया मेरे में अंदर कि पॉडकास्ट देखना मेरे को अच्छा लगता है। तो ऐसे Yep. ही सबकी हॉबी बनो। On India's match, we did the last game. Sorry, we couldn't do today. या आज schedule set नहीं नहीं, कर पाए। मैंने ये एक चीज वो मीत भाई का वो है इंस्टा, यूनाइटेड बेड टाइम टॉक्स पर, नहीं, कि वो हम सबका सबका ही है मतलब। आज। नहीं, उस पे आपने वो पोस्ट करा था, वो मेसी को फैन बना दिया था आपने क्या यूनाइटेड के बंदे से। अरे यार, मेरे को बहुत हंसी आई थी, मेसी को फैन बना दिया। भाई ग्रेनाटा गिरा बिल्कुल, था। we are always invited, enthusiast भाई, नाम भी मैंने पहचान मीत लेंगे भाई को आप। मैसेज करा था वो इंस्टा हैंडल पे, तब उन्होंने बोला था, उन्होंने उस टाइम बुलाया था एथलेटिको के मैच के, बट मेरा मन नहीं था। आपने बोला था कि रात के 4 बजे आ जाओ, किसी को अब्यूज करना है, तो मैं नहीं आना। पापा साथ में थे, वरना पापा अंडरटेकर बन के मेरे को हेलिना सेल खिला देते। चलो, done guys, या हाँ, good session। चलो, थैंक यू कोई थैंक बात यू नहीं। थैंक यू थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच। फॉर कमिंग एंड थैंक यू सी थैंक यू यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक थैंक यू सो मच। थैंक यू।